introducing you, Raju, that you are a miracle boy of 70s. And, you know, all people know you by this name, Master Raju. Then you change Yeah, your name to Raju Shirishta. yeah. Uh, First of all, what you need to me to talk with you? Because this is a general chat. You want me to talk you in English or Hindi, Urdu, Whatever, whatever, or Arabic? whatever. No Arabic. Arabic नहीं चलेगा? Arabic क्या है? Shui shui. Shui shui, yeah. I mean, you So still English, Urdu, whatever. okay. You still have the same smile of that child, which you remember him. राजू जी, आपका नाम मास्टर राजू, उससे पहले गुड्डू था. सो ये बदलाव बचपन से कैसे हो गया? आपका नाम किसने आपसे छीना, जो आपका असल नाम है फहीम, फहीम अजानी? Fahim. या Fahim Ajani is my real name. Guddu was my pet name. My relatives, my friends used to call me Guddu because I used to be very chubby when I was a kid. So when we were shooting for Pariche, somebody called me Guddu. So Sanjeev Kumar, या who was playing my father in Pariche. So he said, "What is Guddu? What does this mean, Guddu? This is not a good name, Guddu. So keep a good filmy name for him." So he only suggested, at that time, Raju was not a very common name. Now it has become very common. So at that time he said, Raju is a good name. So I think you must call him Master Raju. So that is how my name, Master Raju, it was given to me by Sanjeev Kumar. Fahim is my real name, but Fahim is a little difficult name for everybody to understand or anybody to pronounce. And also Fahim Ajani is a very non-filmy या name. In the 70s, when the names of the actors were Khanna and Kumar and Bachchan and, you know, heavy names. So Ajani was, so it's a Master Raju. Then when I grew up, I wanted to change my name and come back to my real name, that is Fahim. यस But then at that time, Sanjeev Kumar expired. या So then I didn't want to change my name because that name was given to me by him. So now that it's a gift from Sanjeev Kumar to me, my name, Master Raju. So then I decided not to change my name and then I kept Raju. But there was still that tag of Master. So even after I grew up, I was in college and I was doing films. Even after growing up, people used to still call me Master Raju, Master Raju. Even when I was 18 years old, 20 years old, everybody used to call me Master Raju. So somebody suggested that you keep a name after Raju. So it should not be who Raju, Master Raju. So you keep another name. So someone again suggested, instead of keeping like S is a very good combination for Leos. I'm a Leo, 15th August is my date of birth. So SRS combination is supposed to be good for Leos. So somebody suggested that you keep a surname with S. So again, I was thinking S, what can be S? Because it cannot be a Sharma or something like that. So I wanted some very general name. So I kept Shresht. Shresht means good in Hindi, means best in Hindi, Shresht. So I had kept my name Raju Shresht. That is how my name became Raju Shresht. Then down the years, I became Shreshtha. People start here in India, like we have yoga. So yoga is actually yog. So people have made it yoga, like Ram. People have made Rama. So there are a lot of things where, you know, down the years, ek A join ho jata hai. That is how Shresht became Shreshtha. And initially I tried to correct people. I used to tell them that it's not Shreshtha, it's Shresht. But then वो जो मेरे checks आने लगे वो श्रेष्ठा के नाम से आने लगे. So मैंने कहा ठीक है भाई, श्रेष्ठा जिस नाम से चेक आ रहे हैं वो आने देते हैं. That is the story from Fahim to Master Raju
to Raju Shrestha. यस बट राजू जी, आपका जो नाम है मास्टर राजू, वो ज्यादातर हमारे पास यानी हम जब भी बोलते हैं तो मास्टर राजू बोलते हैं, या फिर कई ऐसे कैसे ऐसे देयर इज सो मेनी कैरेक्टर्स यू डन व्हेन यू वाज अ चाइल्ड, वी saying your name by that character even in Kitab or in Chichor or in Wasadden. So many movies we taking your name by your character because you know आप जो रोल करते थे वो की रोल्स था बच्चों का, ऐसा रोल नहीं था जो एक बचपना रहता है बच्चे का बाद में बड़ा होके धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन बन जाता है, नहीं, वही जो रोल था आपका वो की रोल था फिल्म के अंदर, और सही मानों में आपने फिल्म नेशनल अवार्ड भी आपको मिला है. First of all, I will show you this picture for all people. This picture reminds you of what? This picture, there used to be a very famous radio program in those days. It used to be called Fauji Bhaiyon Ka Program. It used to come on Sunday, I think, Fauji Bhaiyon Ka Program. So it used to be basically for the army people. It was on the Sunday afternoons. So every Sunday there used to be a celebrity who used to come and host that radio program on All India Radio. Okay. And they used to narrate their anecdotes from their life, episodes from their experiences of life, and then there are 7 to 9 favorite songs. So okay, this program is of that. This photograph is from that program, which was hosted by me and Gulzar Bhai. Yes, that's my point. I'm Yeah. I'm showing this picture to remind you and all people that you done with Gulzar so many movies. और आपकी जो मूवी थी चिचोर, I think the first movie it was no sorry परिचय. परिचय आपकी पहली मूवी थी जो आपको उसमें रोल मिला था, और मैंने सुना था कि आप ऑडिशन के टाइम में आप रोए थे. So वो क्या वजह थी आपकी रोने की? परिचय was released in 72-73. Yes. 1972-73. So at that time, there were no auditions or casting directors and stuff like that. So सिर्फ word of mouth से casting होती थी, director ही casting करता था, वही लोगों में से ढूंढ के निकालता था अपने actors. गुलजार भाई wanted the youngest child for that role in परिचय. और उस वक्त इंडस्ट्री में जितने बच्चे थे, he had seen all of them and he did not like. He was looking for some typical, I don't know, he had something in mind कि मेरे ऐसा होना चाहिए बच्चा. So इंडस्ट्री के उसने सारे बच्चे देख लिए, फिर उसके बाद जो उनके जान पहचान में दोस्तों यारों में जो बच्चे थे वो भी उन्होंने देख लिए. Then he got in touch with some junior artist suppliers, जिनको coordinators आज कहा जाता है. So at that time, there were these suppliers who used to send crowd for birthday parties. फिल्म में birthday parties होती है, songs होते हैं, शादी होती है, तो उसमें जो crowd में जो लोग जाते हैं या बच्चे जाते हैं, तो उन्होंने वो suppliers को उनको भी बोला कि भाई कोई बच्चा बताओ. One of the suppliers was living in my locality. तो उनके जो बच्चे थे वो भी उन्होंने सारे दिखा दिए. गुलजार भाई didn't like those children, so he got in touch with my father कि ये आपका बच्चा है and I see him and ऐसा ऐसा है, फिल्म बन रही है गुलजार. And at that time my family was very non-filmy. My father was a CA, my mother was a teacher. Yeah. So they did not know too much about films and about Gulzar Bhai and things like that. So for us it was a new thing, and in those days, like in 70s, film. So it's something out of reach for a common man. उस जमाने में heroes बहुत larger than life. Film industry was larger than life. It was very big. So we said no, it is not our cup of tea, and we're not interested. And he will not be able to do it. So junior artist का जो supplier था, he said कि मेरा commission बन जाएगा if he gets selected. So he tried to pester my father कि चलो चलते हैं, maybe he likes, maybe he does not, नहीं तो संडे को घूम के आ जाएंगे. So घर में एक डिस्कशन हुआ कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो ठीक है ना. इट वाज दैट वे.
So those days, Bandra, where Gulzar bhai used to live, आज वो crowded हो गया है, but in those days बहुत कम लोग वहां पर रहते थे. तो एड्रेस ढूंढना, I used to stay on one corner of town and Bandra was on the other corner of town. So by the time we reached there, it took us another 2 hours. And then from reaching, hunting, looking out, searching for Gulzar Bhai's house. And I was what, 4 years old, 3 years old, 4 years old at that time. तो बहुत थक चुका था and I wanted to go home even before we met Gulzar Bhai. You remember that? Yeah, I remember crying in front of Gulzar Bhai. Okay. So I remember because ये मुझे बार बार इंटरव्यूज में या लोगों की तरफ मुझे बार बार ये चीजें मुझसे पूछी जाती है. So that is how I remember this episode. So वहां पर भी गए तो 15-20 बच्चे बैठे थे and everybody was very well prepared. कोई डायलॉग बोल के सुना रहा था, कोई कुछ मिमिक्री करके दिखा रहा था, कोई डांस करके दिखा रहा था. And I was कि यार मेरी जान छोड़ो and मुझे यहाँ से निकलना है and I want to go home. Then Gulzar Bhai came and he spoke to me कि क्या नाम है तुम्हारा, and I started crying because मैं उस वक्त थक चुका था. And वो गुलजार भाई वाइट कुर्ता, वाइट पैजामा, चश्मा, दाढ़ी बड़ी हुई. तो said अरे नहीं नहीं नहीं, don't cry. और मेरे पेरेंट्स और वो जो था हमारे साथ आया था कोऑर्डिनेट, सबका मूड खराब हो गया कि we traveled so much and and this kid started crying. We went back home, we reached home. After 2 days, we got a call again from Gulzar Bhai's office that Gulzar Bhai wants to meet me once more. So we went again, and that is the time when Gulzar Bhai and I started talking. So that is the time Gulzar Bhai said that I'll cast this boy because I was looking out for someone who is his age and who's very natural. The kids whom I was seeing were all very well prepared and were too big for their age. So I want someone like him and I will mold him and I will train him the way I want. मैं उसको एक्टर बनाऊंगा मेरे तरीके से. Wow. So that clean slate which I had with no acting background and no acting experience proved to be an advantage for me, and that is how I got परिचय. Yeah. परिचय में मेरा एक सीन था K for करना है, me and केस्टो मुखर्जी का एक सीन था where केस्टो मुखर्जी is teaching us ABCD. I say करना है and मैंने सुसु कर दिया and I do सुसु on the. So that scene got appreciated and Yes. everybody liked it. आज भी YouTube पर वो सीन है. वो सीन और अगले दिन जो संडे को क्रिटिक्स आता है न्यूज़पेपर में तो उसमें I was mentioned that he's the heart stealer and he's a show stealer and he's the best kid of the lot and he's the boy to look out for and he's a heartthrob and this is cutie. And so from Parichai was a silver jubilee. Wow. And I was appreciated in Parichai. Yeah. So Parichai के बाद then I started getting work on my own. That is how Master Raju was born. Yes. राजू आपने कुछ ब्रेक नहीं लिया, बस आपके जो बचपने के रोल थे ज्यादातर एक ऐसी लंबाई थी आपकी कुछ यहाँ तक या यहाँ तक. Suddenly in 83 when I was in cinema I was watching वो सात दिन आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक आपकी लंबाई हो गई थी. So you became a teenage. In this movie वो सात दिन I still remember. मैं सिनेमा में था, मैं भी बच्चा था वो टाइम में, मैं सामने बैठा था. So there was like huge number of people. They don't know Anil Kapoor. They know only Padmani Kolhapuri. They know that there is Nasiruddin Shah in the movie and they know some songs of Shabir Kumar and they know you. When you come in the screen, oh, Raju aa gaya, Master Raju aa gaya. So I remember that people in Abu Dhabi, they're saying behind of me, oh, Master Raju aa gaya. So आपका जो रोल था इस फिल्म के अंदर एक की रोल था. I still remember आपके जो कॉमेडी सीक्वेंस है, आपके जो एक रोने का एक सीन भी था उसमें बहुत ही मजेदार था. आप इसमें एक बहुत ही अहम रोल कर रहे थे, जैसे कि there is a scene gap
there is no Raju for like 30 minutes, and suddenly you come with the new dress to Anil Kapoor. उनको दिखा रहे थे तो सब people, oh आ गया राजू, oh come on. So ये क्रेज था आपका वो बचपने के टाइम में. वही ऐसा दिख रहा था मुझे कि आपका ये बचपना यहाँ तक रुक जाना चाहिए as a teenager or something like that. Then some आपकी कुछ यादें अगर हमें आपके साथ शेयर करनी है हमारे साथ, वो 7 दिन के जो यादें. वो 7 दिन मुझे ऐसा लगता है वो 7 दिन is one of my favorite films, one of my best performances, and I was lucky that I got वो 7 दिन. बट मुझे ऐसा लगता है कि वो 7 दिन अगर मुझे जब मिली उससे अगर 5 साल पहले अगर मिल जाती या मुझे 5 साल बाद मिलती तो it would have been very helpful for me, because वो 7 दिन came to me at a time when I was neither a child nor a grown up. वो 7 दिन was my last film. It was my last film as Master Raju. Yes. तो वो 7 दिन का जो मुझे एडवांटेज मिलना चाहिए था. See, a film like वो 7 दिन today will change things for me. Of course. You know, और वो 7 दिन as a child would have changed things for me. और after growing up, if I would have got वो 7 दिन, things would have changed. वो मुझे एक ऐसे टाइम पे मिल गया. I got appreciated in the film. But उस फिल्म से जो मुझे एडवांटेज मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है. बट वो 7 दिन मुझे कैसे मिली, मैंने फिल्म की थी किताब, गुलजार भाई ने डायरेक्ट की थी, प्राणलाल ने प्रोड्यूस. I won a Filmfare Award for Yes, Kitab. it's very nice movie. So Boni Kapoor's office and Pranlal Mehta's office was in the same building, and Boni Kapoor was looking out for a child to play this role. तो वो सबको बोल रहे थे यार मैं बच्चा ढूंढ रहा हूँ, एक बच्चा ढूंढ रहा हूँ, एक बच्चा. तो he told Pranlal Mehta also कि मैं वो 7 दिन के लिए एक बच्चा ढूंढ रहा हूँ. Do you know anybody? So Pranlal Mehta said that in 1978 this Master Raju did my film Kitab and he was very good in that film. So he must have come by to this age by now. Get in touch with him. Maybe वो आपको suit कर जाए. So Pranlal Mehta recommended my name for वो 7 दिन. And then I was called. Bapu was the director who did not know anything about Hindi cinema. So he met me. He didn't know who I was. I didn't know who he was. But then he saw my films and he saw my. At that time there was no internet. So I told him about whatever work I've done, and then that is how I got वो 7 दिन. Another memorable thing about वो 7 दिन is Anil Kapoor. In fact, recently I saw AK versus AK. Yes. And I wrote on his Insta that the dedication, the power, the actor in Anil Kapoor is still the same as it was in वो 7 दिन. He's such a tremendous actor. You see that the kind of performance is given in Yes. AK versus AK at this age, जो intensity से उन्होंने perform किया है, यही dedication उनका वो 7 दिन में भी था. Before we started वो 7 दिन, I and Anil Kapoor were doing workshops. हम लोगों के लिए रूम बुक कर दिया गया था. With every day we were reading the script and we were speaking our dialogues and we were rehearsing. We were improvising on our scenes with our dresses. मैंने जो कपड़े पहने थे और मेरी ढोलक, अनिल कपूर ने जो कपड़े पहने थे उनका हारमोनियम, और वो लेके हम लोग होटल के रूम में, होटल के कॉरिडोर में हम लोग अपनी स्क्रिप्ट लेकर चलते रहते थे. हम लोग अपना रिहर्सल करते रहते थे, अपना इम्प्रोवाइज करते रहते थे. और वही अनिल कपूर आज भी आप देखिए, कमाल की जो इंटेंसिटी और जो परफॉर्मेंस है वो उस वक्त से मैं आज देख रहा हूँ. बहुत कुछ सीखा है मैंने अनिल कपूर से. मैंने हम आपके दिल में रहते ही मैंने की अनिल कपूर के साथ. उस वक्त भी कई बार जैसे हम लोग सीन्स करते हैं तो हमारे डायलॉग हम बोल देते हैं और हम चले जाते हैं. सामने वाले एक्टर का जब डायलॉग होता है तो असिस्टेंट डायरेक्टर क्यूज देता है. सामने वाले एक्टर के डायलॉग असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है क्योंकि आपका क्लोजअप चल रहा है. तो मैं अपने मेकअप रूम में मेरा डायलॉग असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा है. बट इफ यू डू अ सीन विद अनिल कपूर विल बी ऑन द सेट्स till that scene is being shot. Oh.
कंबाइंड शॉट में भी सेट पर रहेंगे, वो सीन से पहले आपके साथ सीन पर वर्क करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, फिर जब कंबाइंड शॉट है उस वक्त रहेंगे, अपने क्लोजअप के टाइम पे तो वो रहेंगे ही, जब आपके शॉट चल रहे हैं तो वो कैमरे के पीछे खड़े रहकर आपको क्यूज देंगे. there's a long gap between वो 7 दिन and हम आपके दिल में रहते हैं. He is a very big star, but still that dedication कि नहीं, अगर मैं क्यू दूंगा तो मैं एज एन एक्टर क्यू दूंगा, so that will enhance your performance. And I still remember हम आपके दिल में रहते हैं के टाइम पे कोई सीक्वेंस है जिसका मास्टर शॉट ले लिया गया था और अनिल कपूर के क्लोजअप्स लेने थे. तो अनिल कपूर सेट की क्लोजअप है ना कल सुबह ले. He told Satish Kaushik. Next day morning he got up at 4:35 in the morning and sauna, steam, ये वो करके and fresh workout करके and then he gave his close-ups. That should look good. ये जो मैंने सीखा है अनिल कपूर से, जो डेडिकेशन है वो बहुत कमाल है. वो 7 दिन के साथ में जो आपने मुझसे पूछा कि मेरी क्या यादें हैं, तो ये सारी यादें मेरी जुड़ी है वो 7 दिन के साथ. लेकिन आपने कहा ना कि when you were watching this film in the theater and everybody knew Padmini Kolhapur, Naseeruddin Shah and me. Yes. And when I used to come on the screen, people used to say, "Arey, wo aa gaya." Now you were very happy about it, that people were recognizing me. इसका कभी-कभी उल्टा भी हो जाता है. Okay. There was this film called Khuddar. Govinda Karishma Kapoor. Yes. I was playing a villain in that film. Now what happened was I was about to get married during Khuddar. I was supposed to get married. So my mother-in-law had not seen me. My wife knew me. My mother-in-law had not seen me for a very long time, how I look now. And she saw my photograph. This I'm talking about, I'm 28 years back. So उस वक्त खुद्दार रिलीज हुई. So what my relatives told her that my wife is from another town. She's not from Mumbai. So at that time there were no screenshot cameras, no internet and all that. Mm-hmm. So एक दो फोटोग्राफ उन्होंने देखे. So my mother-in-law said कि वो आया था ना, मुझे मिलना था. I want to see how he looks and how he talks and how he walks. And so somebody suggested that अभी खुद्दार film लगी है. So why don't you watch that film? And I was playing a villain. Yeah. And my mother-in-law saw me for the first time as a villain on screen. And she was sitting in the theater. And when I came, जिस तरह लोग वो 7 दिन में हंस रहे थे मुझे देखकर, तो जब मैं स्क्रीन पर आता था लोग गालियां देते थे. Yes. और मुझे मतलब माँ बहन की गालियां दी जाती थी because I was blackmailing करिश्मा कपूर. मैंने उसको अंधा कर दिया था उस फिल्म में. And I was playing a bad man. So my mother-in-law was saying, ये मेरा दामाद है, लोग इसको गालियां दे रहे हैं. And then she was made to understand that he's playing a character, he's playing a role. So sometimes कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं आपके काम को कि they get involved with that character. चाहे वो 7 दिन में मेरा कॉमेडी हो, चाहे खुद्दार में मेरा negative role ho, people get so engrossed with your role, which is a good sign, which proves that as an actor I have proven my point. Yes. And I have performed so well that they are really taking me as that character. So कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है. क्या बात है. वो आपने खुद्दार की बात भी छेड़ी है. मैंने जब खुद्दार भी देखी थी, I was really shocked because your image in my mind and so all people mind, it's like a child, Master Raju. Then so many like honest person, जो अच्छा काम करने वाला बच्चा है, जो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर. लेकिन this 180 degrees different by your all characters. The character of Khuddar, and it's one of your finest acting really. I remember the scene, वो दूध का scene जो था, जब आप दूध में जहर मिला के देते हैं, तो आपका वो रिएक्शन जब देखता था मैं, करिश्मा कपूर जब पिएंगी नहीं पिएंगी, अब फोन आया वो नहीं आया,
तो अभी बच्चे को पिलाने हुआ या पता नहीं, चले गए वहां खुशी के मारे। तो ये आपका जो रिएक्शन था इसमें बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इट्स अट्रैक्टिव, बिकॉज आई रिमेम्बर दैट मूवी टिल नाउ। So nice that in spite of so many years, you remember that film and you remember that scene and you remember my expressions after so many years. Thank you so much, yeah. Thank you so much. Like, आई एम बफ ऑफ बॉलीवुड में बचपन से बहुत फिल्म देखता हूँ। आप मेरे पीछे अगर देख तो मेरा आइडल है धर्म जी, और आप वो हमारा बहुत ताल्लुक रहता है, हम उनके घर जाते हैं, बातचीत भी करते हैं उनके साथ। सो आई विल स्टार्टिंग आस्किंग यू सम ओल्ड क्वेश्चंस बाय ओल्ड जनरेशन सुपरस्टार, देन आई विल कम to your nowadays Raju, what he's doing. First I will show you this picture because he's my idol धर्म जी। आप उनके साथ ये फिल्म में थे समाधि में, उसमें 2 चाइल्ड आर्टिस्ट थे, पहले तो आप थे, बाद में एक दूसरा चाइल्ड आर्टिस्ट, मैं उनका नाम भूल गया, जो अमजद खान के साथ बहुत काम करते थे ज्यादातर। so some memories with the धर्म जी movies like this one and Dream Girl and Karodhi, one of the best movies, हेमा जी के साथ और धर्म जी के साथ। धर्म जी का जो इमेज है ऑन स्क्रीन, धर्म जी is exactly opposite of his screen image. He's not at all a he-man. He's so soft-spoken. He's so emotional. He's so funny. He's so soft-hearted. हम लोग समाधि कर रहे थे, ये जो सीन है जो आपने फोटो अभी दिखाई समाधि, ये फुल गर्मी का मौसम था, हम लोग उदयपुर में शूट कर रहे थे। एंड इसमें एक सीक्वेंस था जहाँ मैं पहाड़ी से गिर जाता हूँ और मैं मर जाता हूँ। अजीम भाई, who is the number 1 fight master of those days, he was the stunt coordinator. प्रकाश मेहरा was the producer director. धर्म जी, सब दिग्गज, सब लेजेंड्स थे सेट पर, एंड एवरीबॉडी न्यू देयर जॉब। तो जब मुझे से गिरना होता है, मैं गिर जाता हूँ, एंड एवरीथिंग वाज लुक्ड आफ्टर माय अबाउट माय सेफ्टी। सबसे ज्यादा धर्म जी डरे हुए थे उस वक्त मेरी सेफ्टी को लेकर, कि अरे ये बच्चा ठीक है ना, अरे इसे चोट तो नहीं लगेगी ना, अरे ये ना, वो खुद आके सर्वे करते थे कि पत्थर हटाओ, ये करो, वो करो, छाता लगाओ, मिट्टी गीली करो, इसको गर्म नहीं लगना चाहिए। ही वाज सो नाइस during Samadhi. Even when we did Dream Girl together, at time he was at the peak of his career, he-man. But he was so nice. He used to play with us, talk to us, and so क्रोधी हम लोग शूट कर रहे थे। मुझे याद है उनका वैनिटी बॉक्स, और ये भंवर सिंह उनका बॉय उस वक्त आता था, छाता हुआ था ये। तो लंच ब्रेक हो गया था क्रोधी की शूटिंग के। क्या रोल था आपका उसमें? हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट, सुभाष घई वाज द डायरेक्टर। तो खाना वाना आ गया, उनका बॉय उनके लिए खाना वाना लेके आया। मेरा खाना आने में, और कुछ प्लेटों खाना दूर था, प्लेट्स आने में टाइम लग रहा था, कुछ तो भी था ऐसा। तो वो उठे, एंड इमेजिन धर्मेंद्र एट द पीक ऑफ हिज करियर, क्रोधी, वो खुद उठते हैं, अपने आइस बॉक्स में से एक प्लेट निकालते हैं और अपने बॉय को बोलते हैं कि खाना लेकर आओ, एंड ही इज वेटिंग फॉर मी। एंड उनका बॉय जाता है, खाना लेकर आता है, देन व्हेन आई स्टार्ट ईटिंग, देन ही स्टार्ट्स ईटिंग। सो दैट इज धर्मेंद्र, सच अ हम्बल मैन, सच अ नाइस मैन। एक फिल्म में कर रहा था सूर्यकांत धर्म जी के साथ, उसमें आप यू नो धर्म जी पर्सनली, यू नो उनका हाथ, एक एक उंगली उनकी से हमारी 2-2 3-3 उंगलियों के बराबर उनकी एक उंगली, उनका हाथ इतना बड़ा हाथ है उनका, हमारे 2 बराबर। तो एक सीन था जहां पर मैं बेहोश हूँ और उनको ऐसे करना है कि उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा, और मैं सब बंद है आंखों, मुझे पता नहीं कब उनका हाथ लगने वाला है मेरे को। तो ही वाज इमोशनल, अरे क्या हो गया, अरे बेटा उठ जा, उठ जा। सीन और डायलॉग परफॉर्म कर रहे हैं और टेक चल रहा है, इज क्राइंग एंड ये वो, और वो बेटा उठ जा करके उन्होंने फाड़ करके, और मैं बेहोश था, मैं ऐसे करके उठ गया कि, एंड ही फेल्ट सो बैड कि अरे यार इसको जोर से लग गई, एंड आई फेल्ट सो बैड किया, मैंने शॉट खराब कर दिया है। तो आई सेड सॉरी यार। तो ही सेड नहीं सॉरी बेटा, पुत्र जोर से तो ना लगी, पुत्र जोर, और मतलब बाकायदा मुझे लग गई उनका हाथ था। और वो सोचो हम्बली, बहुत प्यार से उन्होंने मारा था, मतलब पुत्र
पुत्र बेटा बेटी, तो वो था। और उनको इतना बुरा लगा इस बात का कि है ना बच्चे को इस जोर से लग गया मेरी वजह से। वेरी नाइस मैन यार। धर्म जी के बारे में क्या मतलब, हम लोग पूरा एक सेशन कर सकते हैं। या यू आर राइट। आपका यानी मैं क्यों जब लेजेंडरी के नाम लेता हूँ, क्योंकि आप ऐसे खुशकिस्मत आर्टिस्ट हो आपके बचपने में कि आपको गोदी में इतने बड़े बड़े स्टार्स आपको अपनी गोदी में लिए थे। और यहाँ पर एक फोटो भी है दिलीप साहब का, यूसुफ साहब, ही इज गिविंग यू like clapping or something because of national award or something. I don't remember if you can remind me. हाँ, ये एक एसोसिएशन है एक्टर्स की, Mhm. सेंटा के नाम से अभी कहा जाता है। तो उसमें सिने टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन, तो उस वक्त टेलीविजन नहीं था 70s में, तो ये CAA सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के नाम से ये एसोसिएशन का नाम था CAA। तो जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तो मुझे फेलिसिटेट किया था ये एसोसिएशन है, जो हमारा एक्टर्स का एसोसिएशन। तो मुझे बुके दिलीप साहब के हाथ से मुझे बुके दिया गया था स्टेज पर बुलाकर। एक एनुअल फंक्शन होता है हमारी एसोसिएशन का, Yes. तो उस साल में जिसको जिसको अवार्ड मिला है उन सबको सम्मान दिया जाता है एसोसिएशन की तरफ से। सो आई वाज कॉल्ड ऑन द स्टेज एंड दिलीप साहब गेव मी अ बुके। ये तब की फोटो है, आई थिंक 78 79 की फोटो होगी। वाह। और आप उनके साथ किसी फिल्म में काम किए थे मेरे ख्याल से, या कोई? No, my biggest regret, या I did not get a chance to work with him. Because by the time I started in 72, 73, तो उस वक्त दिलीप साहब was like, मतलब उस then new people had come, यस जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, ये सब था। या So Dilip Saab was not doing too many films at that time. He'd become very choosy. He was doing only one film in a year, and या तो नहीं कर पाया दिलीप साहब के साथ काम। दो आई नो हिम पर्सनली, आई नो द होल फैमिली पर्सनली। मेरा घर पे मैं कई बार उनके जा चुका हूँ, बट काम नहीं कर पाया। एंड राजू, आपके जो फेवरेट स्टार्स हैं मुझे पता है, अमिताभ बच्चन और मिथुन दा। सो आपका ये एक सीन है अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म में। अगर आप कुछ मेमोरीज अमिताभ के बारे में कुछ कहना चाहते हो, और मिथुन दा के बारे में भी। मिथुन दा इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑल्सो। मेरे और दादा के रिलेशन को एक्टर्स से थोड़े ज्यादा है। लाइक वी यस नो ईच अदर ऑन अ पर्सनल लेवल, एंड बिकॉज मेरा और उनका घर सामने सामने था। वी यूज्ड टू स्टे ऑपोजिट ईच अदर, आवर बिल्डिंग्स वर ऑपोजिट ईच अदर। तो वी प्लेड क्रिकेट ऑन द रोड टुगेदर, एंड वी वन द नेशनल अवार्ड। जब मुझे चितचोर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, तब मिथुन चक्रवर्ती को मृग्या के लिए बेस्ट हीरो सेम ईयर या नेशनल अवार्ड मिला था। तो वो मेरा मजाक भी उड़ाते थे। आफ्टर ही बिकेम मिथुन चक्रवर्ती, he said कि मुझे कोई पूछता ही नहीं था नेशनल अवार्ड के टाइम पे, सब राजू का ऑटोग्राफ लेते थे। एंड मैं तो कुर्ता पैजामा और चप्पल पहन के गया था, राजू सूट पहन कर आया था, एंड ये सब उनको याद है। बट क्योंकि मैं उनको दादा को उस टाइम से जानता हूँ, फिर मेरा उनका घर सामने सामने था, हम लोग खेल चुके हैं साथ में। कई अच्छी बुरी यादें हैं मेरे उनके साथ। कई हम वो सेंटा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उस दौरान भी मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है दादा के साथ। आज भी अ, एक एक अलग मेरा इक्वेशन है मिठुंदा। रही बात अमित जी की, मैंने अभिमान में मैंने सबसे पहले उनके साथ काम किया था। हैड अ वेरी स्मॉल रोल इन अभिमान। फरार आई हैड अ बिग दिस रोल। वन, दिस फरार, दिस इज फरार। या दिस फरार। एंड खुद्दार आई प्लेड हिज चाइल्डहुड खुद्दार, एंड नास्तिक I played हाँ his childhood, and some other film which I don't remember. Trishul also I played his childhood, and some more films. But फरार के टाइम पे ऐसा होता था कि at that time I was doing 3 shootings in a day, 2 shootings in a day, 3 shootings in a day. Sanjeev Kumar was very famous for coming late on the sets. वो 9 बजे की शिफ्ट में 11 बजे 12 बजे आते थे।
और Okay. मैं क्योंकि 2-3 शिफ्ट, मैंने 2-2 3-3 अलग अलग फिल्मों की एक दिन में शूटिंग कर रहा होता था, तो मैं भी टाइम पर नहीं पहुंच पाता था। तो अमिताभ बच्चन पंचुअल, वो 9 बजे की शिफ्ट में 8:45 को वो पहुंच जाते थे। मैक्सिमम ऑफ आर सीन्स में ये होता था कि जब अमिताभ बच्चन पहुंच जाते थे सेट पर, तो उनके क्लोजअप्स ले लिए जाते थे कि अब संजीव कुमार भी नहीं आया है, मास्टर राजू भी नहीं आया है, he is there. That time he was a known actor, but he was not अमिताभ बच्चन जो वो उस वक्त संजीव कुमार, राजेश खन्ना और देवानंद और ये सारे लोग, बनारसी बाबू देवानंद की उस वक्त हिट हुई, ये सारे एक्टर्स थे। तो अब अमिताभ बच्चन पंचुअली वो अपने 8:45 को पहुंच जाते थे। मेरे उनके जितने सीन्स होते थे वो उनके क्लोजअप ले लिए जाते थे, मैं हूं भी नहीं सेट। Okay. और जब मैं आता था सेट पर, संजीव कुमार आते थे सेट पर, तो उनको बोलते थे बैठ जाओ, क्योंकि अब ये लोग वापस चले जाएंगे 4 घंटे बाद, सो वी हैव टू फिनिश देयर वर्क फर्स्ट। सो आई मीन आई फील सो बैड इवन थिंकिंग अबाउट इट टुडे कि अमिताभ बच्चन को बिठा दिया जाता था मेरी वजह से, बिकॉज आई हैड टू गो समवेयर एल्स। तो मेरे क्लोजअप्स ले लिए जाते थे, और फिर हमारे उनके जो कंबाइंड शॉट्स है वो, एंड देन ये तो है ही पूरा दिन सेट पर, अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू बी दैट टिल 9 o'clock इन द नाइट, ये लोग तो चले जाएंगे। तो मेरे और संजीव कुमार के शॉट्स लिए जाते थे, एंड दे यूज्ड टू बी वेटिंग। और उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की इस बात को लेकर, कभी उन्होंने अपनी नाराजगी नहीं जताई। सो नाइस ऑफ हिम, सो प्रोफेशनल ऑन हिज पार्ट। बट उस वक्त ट्रेंड ये था कि हर एक्टर 2-2 3-3 फिल्मों की शूटिंग एक दिन में करता था, और वो मेरा पीक पीरियड चल रहा था। सो आई ऑल्सो हैड डेट्स इश्यूज एंड आई वाज डूइंग टू Yes. मेनी फिल्म्स, आई डिड नॉट हैव टाइम। सो आज सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि अमिताभ बच्चन यूज्ड टू वेट फॉर मी। वो बहुत फनी भी लगता है। You were 1 lakh fees child artist. ये हम सुने हैं, ये भी that's a huge amount for a child artist in that time, you know. All people Yes, they should know about this. yes. I guess I was lucky. I was lucky that I got to do the right films with the right people at the right time. And then जब मेरा टाइम अच्छा चल रहा था, roles were being written for me, especially my for me in the film. And yes, I have reached this kind of an amount during those days. And again, luckily, मेरे वक्त के जितने चाइल्ड एक्टर्स थे या मुझसे पहले के जो चाइल्ड एक्टर्स थे, उनके फंड्स को ठीक से मैनेज नहीं किया गया। Yeah. But my father was a CA. He was into accounts, and my mother was a teacher. तो वो जो मेरा बेस्ट पीरियड था, फ्रॉम 72 टू 86-84 का, ये जो मेरा पीरियड था, उस दौरान जो भी मैंने कमाया है, मतलब जो आप 1 लाख का अमाउंट बोल रहे हैं, उस जमाने में 1 लाख में एक फ्लैट आ जाता था बैंड्रा में, एंड आई यूज्ड टू चार्ज दिस मच पर फिल्म इन दोस डेज। I was lucky. God has been very kind. Alhamdulillah. So, and then my money was invested very wisely by my parents. So that is the reason I'm in a very safe zone today. तो जो insecurities होती है दूसरे एक्टर्स को फाइनेंशियली, वो नहीं है। If good work comes, fine. If good work doesn't come, fine. By the grace of God, there is enough coming to survive. Okay, Raju, I will go to your second phase, but before of that, I have little break for you. ये हमारा गहवा है इमारात का। We put it, ये हम जब किसी को जब प्रेजेंट करते हैं, we put it. Yeah, I will put it in there also. Yeah. So हम इसमें डालते हैं, इसका नाम है फिंजान और इसका नाम है दल्ला। इस फिंजान में हम क्वार्टर डालते हैं, फुल नहीं डालते, क्वार्टर, ताकि जो विजिटर हमारे साथ पीते हैं, अगर उनको बस है तो ऐसा करते हैं। That's finished. If he need more, he will do like this. That means he need more. Yeah, so it's our tradition. When anybody come in my home, I should give him qahwa. That's our Emirati tradition.
So next time when I come to your house, I'm expecting this gawa from you. You expecting qahwa and you expecting this sweet also, which name is gemat. Kehmat, ये Yes. कुछ गुलाब जामुन की तरह दिखता है, लेकिन ये क्रिस्पी है, and it is named gemat. It's our sweet. I'll tell you something. I have tried both the dish. I've had gahwa and I've had this also when I was in Dubai. Oh, good. Yeah. ये कब आए थे आप दुबई? I've come so many times. I've come so many times to Dubai. Very good, very good. एक बार मैं इवेंट के लिए आया था. There was a play. Then once I came to Oman. तो उस वक्त हम लोग बाई रोड एक बार दुबई आए थे. उससे पहले भी मैं एक दो बार आया था. I have lot many. एक टाइम पर अल नासर लेजरलैंड Yes. बहुत हॉट हुआ करता था उस जमाने में. मैं उस जमाने में भी आ चुका हूँ. And I was a guest of Al Nasser in those days. तो मैं उनके घर पे भी गया था. And फिर I remember in those गलादारी family एक थी. I don't know. Kaladari, yes. तो वो this is very long back. फिर उसके बाद मैं इवेंट्स लेकर आया हूँ. मैं प्लेस लेकर आया हूँ दुबई. And I have many Wow. friends there. बहुत सारी शूटिंग्स भी चलती है वहाँ पर सीरियल्स की. Yes. So I have a lot many director friends there. Also, even now, I am negotiating with a few people to direct something in Dubai. So maybe very soon we will meet in Dubai where I will be directing something Inshallah. for a television house. There are about directing a TV serial. There. That's very nice. तो बातें चल रही. बहुत अच्छी बात है. राजू जी, आपका सेकंड फेस फ्रॉम मास्टर राजू टू राजू श्रिश्ता. मैंने आई सॉ योर फर्स्ट टाइम इन यंग अवतार, जो मास्टर से अब यंग हो गए, इन महासंग्राम. आई रिमेम्बर महासंग्राम मूवी. पता नहीं अगर उससे पहले कोई फिल्म आई थी, लेकिन मेरे नज़र में महासंग्राम शायद वो पहली मूवी थी जहां पर आप एज अ सपोर्टिंग रोल एंड यंग राजू doing. I remember the scene when आप विनोद खन्ना को एक फ्लैशबैक बोलते हैं गोविंदा के बारे में. तो जब उनका रिएक्शन बदल जाता है विनोद खन्ना का, खून जब ऐसा बोलते हैं, तो आप रोके आपका एहसास था, you will crying or you are afraid. हाँ I remember that scene in the cinema. ये मूवी के बाद मैंने बोला सब, यानी मैंने बहुत सात दिन देखी थी, कई फिल्में देखी थी. बोले अरे ये मास्टर राजू को हीरो का रोल क्यों नहीं मिल रहा था. उसके बाद मैंने बागी भी देखी, अफसाना प्यार का देखी थी, खुददार आई थी, बाद में आप विलन के रोल करने लगे. तो मैं बोलूं राजू को हीरो का रोल क्यों नहीं मिला. बचपने में हम उनको हीरो फैसिलिटी दिख रहे थे बच्चे में, that this guy he will be a hero, he will be like Amitabh Bachchan, like मिथुन चक्रवर्ती in the future. बट ये क्या हो गया, जैसे कि आपने कुछ कहा आपने वो 7 दिन के बारे में कि आपको उसमें फायदा नहीं मिला. तो ये क्या है, ये इस बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो? I was always a fan of प्राण साहब, कादर खान, शक्ति कपूर, अनुपम खेर. तो मुझे पहले से ये था कि I don't want to become a hero and do the same role, same character. So I wanted to experiment with a lot of characters. कभी मैं विलन भी बन जाऊं, मैं कभी कॉमेडी भी करूं, मैं कभी इमोशनल रोल भी करूं. उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि I want to become a successful character actor. Okay. Like प्राण साहब, like अनुपम खेर, like कादर खान. जैसे कि मैं कहा था कि आपके की रोल्स है बचपने में, वो की रोल्स हमने ज्यादा नहीं देखे आपके जो जवानी के रोल में थे, की रोल्स. I see, that is where I think that is where I miscalculated. Today when I realized that hero has become so big, मुझे लगता है कि उस वक्त maybe I should have said yes to the offers which I was getting as a hero. मतलब Okay. मुझे हीरो के ऑफर आते थे, मैं मना कर देता. Okay. कि नहीं, मुझे हीरो नहीं बनना, I want to become a villain. मैं नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव. That is how I got खुददार. That's very अजीब बात है भाई. वो बहुत, हाँ, that I regret
doing it today because see, I did not have a family filmy family background. Yeah. There was no one to guide me. So that is much later that I realized that Prem Chopra और प्रेमनाथ, ये जितने भी बड़े villains थे, they all had started as a hero Yes. and then they became a villain or a character actor. But जब मैंने 70s 80s में उनको देखा, they were very big character actors. So मेरा calculation ये था that if I would have signed film as a hero, 8, 10, 15 फिल्में as a hero करके, then if I would have switched towards character roles, then the story would have been different. Because आज भी आप देखिए कॉमेडी रोल्स अरशद वारसी या रितेश देशमुख या हीरो ही कर रहा है कॉमेडी. Yes. विलन के लिए सुनील शेट्टी या ये हीरो ही कर रहा है विलन के रोल. गुड मीटी कैरेक्टर रोल जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, ये हीरो ही कर रहा है. Yes. So today I realize that वो एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था मेरी तरफ से. Now this is destiny, this is किस्मत कि I was getting offers as a lead role और मैं मना कर रहा था. अगर मैं हाँ कर देता, वही किस्मत है और वही डेस्टिनी है. बिकॉज अगर मैं कुछ नहीं करता, मैं टेलीविजन भी अगर करता तो थिंग्स वुड हैव बीन ऑन, लाइक जैसे रोनित रॉय है या अयूब खान है या तो दूसरे एक्टर्स हैं हु स्विच्ड फ्रॉम फिल्म हीरो टू टेलीविजन, Yeah. are in a much better position. I made a mistake, very big mistake there by saying no to main lead roles and opting for character role at a very initial stage of my career. I think I should have signed films as a hero. जब मुझे ऑफर आ रहा था और मैं मना कर रहा था, तो वो अगर मैं कर लेता, 8-10 फिल्में कर लेता, then it would have been very easy for me to get into character roles. So I made a big mistake there. But also आपने कुछ इंटरव्यू में कहा था कि आप बोर भी हो गए थे फिल्मी हीरो के दोस्त बनते. You are became like दोस्त of that kind of roles. See, that is where my see, I had there was a time when I was getting roles of one of the 3 friends of the hero or hero's friend. तो मुझे लगा कि नहीं, I am capable of much more and I don't want to end up as a चमचा of the hero. And मैंने character roles की तरह switch किया था because I wanted to do difficult roles. I wanted to do different shades of role. Like आपने मेरी फिल्म देखी होगी अनाड़ी. Yeah. उसमें I was playing a mentally retarded Yes. character, फूल with कुमार गौरव, Madhuri. माधुरी दीक्षित. उसमें भी मैंने एक violent mad man का मैंने रोल प्ले किया था. I played negative role in खुद्दार. I played comedian in so many films. I played emotional role in हम आपके दिल में रहते हैं. Then I was very popular as Narad at one time doing television mythological. I have done almost 3,000 episodes Wow. of Narad. तो then I realized कि नहीं यार, ये मैं हीरो के दोस्त के जो ब्रैकेट में मैं आ गया हूँ, which is a very bad, because उसमें ना आपका रोल होता है, ना आपके डायलॉग अच्छे होते हैं, ना आपके पास कुछ करने के लिए उसमें होता है, ना आपको पैसे अच्छे मिलते हैं, ना सेट पे कुछ रिस्पेक्ट होती है, ना पब्लिक में कोई रिस्पेक्ट होती है. तो रियली नहीं यार, आई हैव गॉट इनटू दिस रॉन्ग स्लॉट और यहाँ पे मेरा फ्यूचर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. सो आई स्टार्टेड सेइंग नो हीरो के दोस्त के रोल के लिए. तो लॉट ऑफ बिग एक्टर्स, माय फ्रेंड्स, बिग हीरोज फेल्ट बैड कि मैं तेरा नाम डाल रहा हूँ मेरे दोस्त के रोल के लिए और तू मना कर रहा है, यू डोंट वांट टू वर्क विद मी. And I used to tell them कि नहीं यार, if you want to recommend my name, recommend for a better role, because the hero के दोस्त का role I'm not interested. So I started saying no to hero's friend's role, and also there was a time when I was saying no to drug addict roles. एक टाइम गया था where I was getting a lot of offers for drug addicts. साथ ही मैंने की थी महेश भट्ट के साथ. Yeah. In that I was playing a drug addict. तो I got appreciated as a drug addict. तो उस वक्त ये भी हो गया था लोगों में, प्रेस में और पब्लिक में कि आई वॉज एक्चुअली अ ड्रग एडिक्ट. इसीलिए मैं इतना अच्छा एक्टिंग कर पा रहा हूँ ड्रग एडिक्ट. आई वॉज ब्रांडेड एज अ ड्रग एडिक्ट विच आई वॉज नॉट. तो मेरा नाम भी खराब हो रहा था, ड्रग एडिक्ट है ये, ड्रग लेता है. तो ये हीरो के दोस्त का रोल और ये ड्रग एडिक्ट का रोल, ये खुद मैं मना करता था बिकॉज आई डिडंट वांट दैट इमेज, दैट ब्रांडिंग.
तो फिर वो मना करने का मुझे फायदा भी हुआ. आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर रोल्स, बेटर फिल्म्स. खुद्दार मुझे मिली विलन के रोल में. वहां से मेरा एक सेकंड, मेरी जो इनिंग थी आप समझ लीजिए, खुद्दार से शुरू हुई. यस. फिर जब मैंने नारद का रोल किया, जय हनुमान मेरा एक सीरियल आता था, उसमें मैंने नारद का रोल किया, तो वो अप्रिशिएट हुआ. तो उसके बाद आई डिड ऑलमोस्ट 3000 एपिसोड्स ऑफ नारद, ऑफ डिफरेंट सीरियल्स. तो हीरो के दोस्त के रोल की जो आप बात कर रहे थे कि मैं मना कर रहा था, तो आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट स्लॉट, और उसका फिर मुझे ये फायदा नहीं. सो यू फील कि आपको फायदा हुआ कि आपने ये रोल बंद करे अपने करियर में, लेकिन उसके बाद कौन सा फायदा, जैसे कि आप बोल रहे सीरियल्स एंड यू डिड डायरेक्शन आल्सो, पंजाबी मूवी आई बिलीव. I did, I directed a Punjabi film and then I also directed a Hindi film. या आप I कुछ think बताना which चाहते got हो हिंदी released. फिल्म के बारे में? वो रिलीज हो चुकी है लास्ट ईयर, हम्म. and now I am negotiating with a popular heroine. I have a heroine oriented story with me, so I am negotiating about that story with a heroine. Hopefully, if things work out, then I will be directing that film with a big heroine. So अभी सिर्फ बातें चल रही है. So yes, I'm trying to get into direction. या आप माशाल्लाह लिखते भी हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हो मेरे ख्याल से. तो आपकी कुछ ऐसी फिल्म्स है जो आपके आइडियाज पे आधारित हो, या आपके आइडिया की वजह से वो फिल्म बनी है? अगर आप कुछ बोलना चाहते हो उन फिल्मों के बारे में, या कुछ ऐसा है? मेरी आइडिया पर कोई पूरी फिल्म तो नहीं बनी, बट मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें बहुत सारे इनपुट्स मेरे रहे हैं, या जो कॉमेडी है वो सीक्वेंसेस मेरे बनाए हुए रहे हैं. या किताब आप देख लीजिए गुलजार भाई की, हम्म. उसमें बहुत सारी सीन्स मेरे हैं इन द सेंस विथ माय इनपुट्स, वेयर आई हैव टोल्ड गुलजार भाई कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा ऐसा हो सकता है, या स्कूल में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे झूठ बोलते हैं, या तो बहुत सारे सीक्वेंस मैंने और गुलजार भाई ने बैठ के बनाए हैं. बहुत सारी फिल्में मैंने की है. ताकत एक फिल्म थी, उसमें बहुत सारे सीन्स मेरे बनाए थे. बहुत सारे ऐसे हैं, बट हाँ ताकत कौन थ्रू सी, आउट मुझे पुरानी या फिर या नई वाली? धर्म जी नई की? वाली, हाँ, जो धर्म, धर्म जी शत्रुघ्न. ओके. हाँ विकास भल्ला, काजोल. या तो ऐसे रहा, बस आउट एंड आउट पूरी मेरी स्टोरी पर अभी तक नहीं. जो मेरी जो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है, इसको लेकर मैंने जहां जहां पर मैंने पिच किया है ये सब्जेक्ट, तो मुझसे ये कहा गया कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आप सब्जेक्ट बेचना चाहोगे क्या, स्टोरी अब बेचना चाहोगे क्या, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि आई वांट टू डायरेक्ट दिस. तो आई हैव गॉट दिस ऑफर फ्रॉम टू वेरी बिग प्रोडक्शन हाउसेस वेयर दे हैव लाइक्ड माय सब्जेक्ट, बट दे ऑलरेडी हैव डायरेक्टर्स, सो दे वांटेड मी टू सेल देयर सब्जेक्ट व्हिच आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन. तो अभी मेरी बात चल रही है किसी हीरोइन के साथ. वाह. होपफुली थिंग्स वर्क आउट, आई विल बी डायरेक्टिंग दैट फिल्म. इफ नॉट तो एक्टिंग चल ही रही. इंशाल्लाह. राजू जी, 2 साल पहले आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, और वहां पे आपने एक बात कही थी कि अभी जो जमाना बदल रहा है, सिनेमा बदल रहा है. 2 साल के से पहले आपने एक बात बोली थी, वो बात अभी हो रही है सही में, कि हीरोज या फिर एक्टर्स रहेंगे दो तरीके के, एक सिनेमा घर के लिए, और एक नेटफ्लिक्स या फिर ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो चल रहा है आजकल. तो आपने ये बात छेड़ी है, तो आपका इसका क्या नजरिया है कि आजकल जो ओटीटी में जो चल रहा है, जो फिल्म्स आ रही है, और आपने एक सीरीज भी करी है अभय में एक छोटा सा रोल भी है आपका, तो ये आपका क्या नजरिया है ओटीटी के प्लेटफॉर्म के बारे में? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी आई थिंक आफ्टर शाहरुख एंड सलमान, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत बड़ा स्टार या लेजेंडरी कोई एक्टर अब होगा. अभी के सिनेरियो को देखकर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ फिल्में हुआ करती, फिर उसके बाद टीवी आया, तो टीवी के अपने स्टार्स होते थे जिनको लोगों को फ्री में देखने की आदत थी, और कुछ फिल्मों के एक्टर्स होते थे जो लार्जर देन लाइफ हुआ करते. अब क्या हो गया है, ये जो लार्जर देन लाइफ एक्टर्स हैं ये भी ओटीटी पर आ गए हैं, और जिनको फ्री में देखने की आदत है वो भी
OTT पर आ गए हैं, और अभी OTT प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हो गए हैं, सोशल मीडिया इतना आ गया है, टेलीविजन सीरियल्स इतनी बनने लग गई है, फिल्में इतनी बनने लग गई है, तो जो स्टारडम है वो स्टारडम अब कहीं जाकर डाइल्यूट हो गया है। पहले कुछ नहीं था, सिर्फ फिल्में हुआ करती, तो आपके पास अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, लास्ट तक शाहरुख, सलमान। अब लग रहा है कि वो जो एक लाइन थी फिल्म और टीवी और OTT की, वो लाइन हट गई। अब पंकज त्रिपाठी जो OTT के एक्टर, ये फिल्म भी करते हैं, सलमान टीवी भी करता है, अमिताभ बच्चन की फिल्म OTT पर आती है, OTT का एक्टर सीरियल। तो ये जो ये होने के बाद अब क्या हो गया, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत बड़ा ऐसा लेजेंडरी एक्टर कोई आएगा जिसको आप 20 साल बाद तक भी याद करोगे। जैसे धर्म जी की हम आज भी बात कर रहे हैं, अमित जी की हम आज भी बात कर रहे हैं, और अगले कई सालों तक हम अमित जी की बात करते रहेंगे। जो एक शेल्फ लाइफ एक एक्टर का होता था, वो शेल्फ लाइफ मुझे नहीं लगता कि आज से 20 साल बाद आज के किसी एक्टर का हो पाएगा। Mm-hmm. जैसे म्यूजिक का आप देख लीजिए, म्यूजिक Yeah. का एक शेल्फ लाइफ होता था कि रफी, किशोर, मुकेश, RD, लक्ष्मी प्यारे, वो आज आपको शेल्फ लाइफ नहीं है। आप, मुझे नहीं लगता कि आप सोनू निगम के गाने आप 10 साल बाद आपको आप गुनगुनाएंगे या आपका दिल मचलेगा उस गाने पे। वो शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। वही फिल्मों की है, शोले या इस टाइप की, पाकीज़ा, या आप जो भी आप देख लीजिए, आज की आपके पास ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो आपको 20 साल बाद याद रहेगी। पीके, पीके जैसी फिल्म अपने टाइम पे, 3 इडियट्स अपने टाइम पे इतनी बड़ी हिट रही है, बट वो शेल्फ लाइफ नहीं रह पाएगी। 20 साल बाद आपको शायद पीके या ये फिल्में आपको शायद याद ना रहे। उसी तरह आज के एक्टर्स भी इतने बड़े लेजेंड्स या इतने बड़े स्टार्स नहीं हो पाएंगे जैसे पहले थे। मुझे लगता है जो एक होता है ना, एक गाढ़ापन था, एक थिकनेस थी जो पॉपुलैरिटी की, वो थोड़ी सी अब डाइल्यूट हो गई है। अब मुझे लगता है नेटफ्लिक्स का अपना एक स्टार होगा, अमेजोन प्राइम का अपना एक स्टार होगा, स्टार प्लस पे सब टीवी का अपना एक स्टार है, फिल्मों का अपना एक, तो इस तरह बहुत सारे स्टार्स आपको। अब आप किसके फैन हैं, अब आप देखिए, आपके पास अब चॉइस बहुत सारी है। Mm-hmm. आपको पंकज त्रिपाठी एंड उस टाइप की आपको सिनेमा पसंद है, आप वो देखिए। आपको नवाजुद्दीन पसंद है, आप वो देखिए। आपको सलमान खान और उस टाइप की फिल्में पसंद है, आप वो देखिए। आपको कॉमेडी पसंद है, फिर तो अभी अभी थोड़ा सा मामला वो डाइल्यूट हो गया है, वो स्टार्टअप, मुझे ऐसा लगता है आज की हालत में। टुमारो यू नेवर। पहले जमाने में हम टिकट खरीदते थे फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले, या फिर हम जाते थे सिनेमा घर, फिल्म का पोस्टर देख के फिल्म देखते थे। कोई उसका ट्रेलर या टीजर उसका कुछ समझ में नहीं आता था। सो वी सी द मूवी बाय द बिग स्टार्स ऑन द पिक्चर, ऑन द फोटो, और म्यूजिक डायरेक्टर ने, लाइक अगर मैं जाता था बचपने में 80s के जमाने में, तो मैं देखता था लक्ष्मीकांत पेरेरा, ओके ये फिल्म के गाने अच्छे रहेंगे तो ये फिल्म देखेंगे हम साथ में मिलके। सो दैट टाइम इज रियली डिफरेंट than what you are saying. You are right, it's very different. यस 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 यस। Yeah, यहाँ पे एक एंड किसी, या सॉरी, you can continue. I think almost 1,000 people are watching us. Yeah, 1,300 people are watching. So I'm very active on social media. Whoever wants to join with me can connect with me on my Insta, and I'm also on FB. I have a page on FB and I have a Insta ID. आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ. I'm on a one-to-one basis with everybody. इंशाल्लाह So come and join me. Let's have fun. मेरा जो जरूर। इंस्टा का आईडी है that is Raju Shrestha _official, and my Facebook page is @it's Master Raju. So connect with me there. Yes, next question. जरूर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, कुछ क्विक क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। पहले तो किसी ने मुझे एक फोटो भेजी है। he told me that he is your colleague in school. He used to be your colleague. He is now based in Dubai. He is working in I know, आप नहीं बताओगे तो भी मैं आपको बता दूंगा ये कौन है।
या वो आरजे है वो दुबई में, Uh-huh. His वेरी name? फेमस आर, हिज नेम इज, हम लोग उनको प्रिंस के नाम से जानते Yes, हैं, yes, you are आई right. थिंक। Yes, एट आई Prince. थिंक एट वन टाइम इन दुबई ही वाज वेरी पॉपुलर एज घंटा सिंह। Yeah. यस। एंड आपको एक और बात बताऊं कि जैसे कर्ज में पता है पिंचू कपूर हमेशा बोलते थे हु इज द मेकर, आई एम द मेकर, आई मेड, वो ऋषि कपूर को हमेशा बोलते रहते। वैसे Mhm. जब भी मैं प्रिंस को बोलता हूँ ना, मैं प्रिंस को बोलता हूँ आई एम द मेकर, बिकॉज उसको सबसे पहले एक्टिंग का ब्रेक मैंने दिया था। Okay. व्हेन वी वर इन स्कूल, ही वाज अ वेरी सीरियस एंड स्टूडियस बच्चा हुआ करता, उसको एक्टिंग का कीड़ा मैंने कटाया। Okay. So he came on the stage for the first time because of me, and acting उसने मेरी वजह से, वहां से उसको कीड़ा काटा। Then he started acting, and then he became an RJ, and then of course he had talent. So, and I'm very happy for him that he is so famous in Dubai. अच्छा लगता है कि मेरे एक दोस्त का इतना बड़ा नाम। Yeah. उन्होंने ये फोटो भेजी थी हमें। ये आई थिंक इट्स ओ हाँ, यस यस, ये हमारा स्कूल का रीयूनियन था। यस 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 यस, बट ही वाज नॉट देयर इन दिस। yeah, maybe he's taking the picture or I don't हाँ know. हाँ हाँ, नो ही डिडंट कम। He didn't come. आई थिंक वो, हाँ, उसको शायद नई हॉलीडेज मिली थी या ऐसे कुछ तो हुआ था। ही वांटेड टू कम एंड देन ही कुडंट कम, कुछ हुआ था ऐसा। बट हाँ, ये हमारा एक इनर सर्कल था स्कूल का। यस, ये फोटो उसी ने भेजी। Yeah, and he said so many good things about you. He said that Raju, he's a hard worker and everything. I know him before 2 years back, and because I'm doing some interviews in Dubai, so he meet me and he know me. So he told me about you. Raju वेरी, ji, I will ask you some quick questions. हमने कई फिल्मों के बारे में बात भी की है और नए पुराने फिल्में। पुरानी फिल्मों में अगर मैं आपको पूछूंगा आपके टॉप 3 बेस्ट मूवीज, आपके बचपन के फिल्म्स। वो 7 दिन, किताब, एंड परिचय। वाह वाह, मुझे अभी तक वो याद है आपका सीन, ट्रेन का सीन, सीक्वेंस, जब ट्रेन में आप सोते हो और वो क्या सीन है, वो लाजवाब सीन था वो। समथिंग यू नो, फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग द मिरेकल बॉय ऑफ बॉलीवुड दैट टाइम। यू, दैट्स रियली नेचुरल एक्टिंग। नो, कोई बच्चा ऐसा दिखता नहीं कि ऐसा नेचुरल एक्टिंग कर सकता है। वो सब पढ़ के या फिर असिस्टेंट को देख के वो करते हैं एक्टिंग, लेकिन आपकी एक्टिंग थी नेचुरल। आई डोंट नो हाउ यू डू दिस, Thank you, and you are thank you not so from much. filmy ground. I am not from film background. Yeah. I don't know. I've just been lucky, and I don't know. Maybe I had that talent, or I don't know. Gulzar Bhai was there to guide me, and I was lucky in the initial stages of my career. I worked with Yash Chopra, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार। ये सब मेरी स्टार्टिंग की फिल्म है। बावर्ची, दाग, परिचय, सो बासु चैटर्जी, ये बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स के साथ जो मुझे काम करने का मौका मिला एट द इनिशियल स्टेज ऑफ माय करियर, दिस आई थिंक मस्ट हैव हेल्प्ड मी टू पॉलिश माय सेल्फ एज एन एक्टर। ऐसे बहुत सारी फिल्म, जैसे फरार में मेरा रोल बहुत अच्छा था। Yeah. और भी एक फिल्म आई थी शमा, विच वाज द ओनली फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय कादर खान। ये इसमें शबाना आजमी थी मेरे ख्याल से, या फिर शबाना आजमी, या शबाना स्टोरी आजमी। ऑफ अ स्टेप मदर एंड स्टेप सन। या So Azmi was stepmother, I was the stepson. Very good role I had. It is again one of my favorite films. ऐसी बहुत सारी मेरी अच्छी फिल्में रही जिसमें मेरा बहुत अच्छा रोल रहा है। बट अगर टॉप 3 आप बोले तो, लाइक आई हैव डन 250, मोर देन 250 फिल्म्स एज एन एक्टर। तो माशाल्लाह। उसमें से 3 फिल्में निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल परिचय, किताब एंड वो 7 दिन। अच्छा, आपके यंग टाइम में, आपके आफ्टर मास्टर राजू, आपके 3 बेस्ट मूवीज। खुददार गोविंदा के साथ, और खुददार, हम आपके दिल में रहते हैं विद अनिल कपूर, अनाड़ी, अनाड़ी, वेयर आई हैड अ वेरी डिफरेंट रोल। ये मेरी 3 फेवरेट फिल्म्स में से है। ऑल्सो एक मैंने फिल्म की थी ब्लैक फ्राइडे, वाह, अनुराग कश्यप। या वो मेरी फेवरेट फिल्म है बिकॉज उस फिल्म में
फॉर मी दैट फिल्म वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. मुझे बहुत कुछ सीखने मिला बिकॉज वो एक अलग तरीके की फिल्म थी, अलग तरीके के लोग उस फिल्म को बना रहे थे. वी डिड नॉट हैव अ बाउंड स्क्रिप्ट, वी डिड नॉट हैव अ बाउंड डायलॉग्स. बहुत सारा इम्प्रोवाइज होता था स्टेज पर, सेट पर. एक अलग एक्सपीरियंस था. उसके वर्कशॉप्स होते थे, नए किस्म के लोग थे. मैंने बहुत कुछ सीखा है. आज का सिनेमा, मैंने मेरा एक्टिंग का पैटर्न बहुत बदला है. ब्लैक फ्राइडे में काम करने के बाद मुझे लगा कि ओ ये ट्रेंड चल रहा है, ये परफॉर्मेंस चल रही है. तो वो फिल्मी से हटके मैंने मेरा एक्टिंग का स्टाइल बदला है ब्लैक फ्राइडे के बाद. तो ब्लैक फ्राइडे अगेन हैज बीन अ वेरी फिल्म व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. एक और फिल्म मैं आपको बताता हूँ which has been, I can, we can go more than 1 hour ना, कोई इश्यू तो नहीं उसके अंदर कि Yeah, 1 hour yeah, की. yeah, why not? देखिए, डेस्टिनी की हम लोग बात करते हैं कि किस्मत. why I was chosen for परिचय after so many, in spite of so many children. Why I am the only child actor who is still an actor even after growing up. जैसे कि बहुत सारे चाइल्ड एक्टर अभी नहीं दिखते, कोई भी चाइल्ड एक्टर अभी नहीं. लोग मुझे बोलते हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि हीरो में आप नहीं दिखते हैं, आप कैरेक्टर्स में दिखते हैं, आप टीवी में दिखते हैं. मैं ये बोलता हूँ कि मुझे इस बात की क्रेडिट मिलनी चाहिए कि मैं एज ए चाइल्ड एक्टर होने के बाद आज भी दिख रहा हूँ, जबकि दूसरे चाइल्ड एक्टर्स नहीं दिख रहे हैं. सही बात है. अ, अ, तो मैं डेस्टिनी में बहुत मानता हूँ. एक जो फिल्म है विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज साजन चले ससुराल. नाउ साजन चले ससुराल में, नॉट बिकॉज ऑफ माई रोल, बट मैं डेस्टिनी की बात कर रहा हूँ कि वाई दिस फिल्म इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. दिस फिल्म वॉज सपोज टू बी डायरेक्टेड बाई समवन एल्स एंड नॉट बाई डेविड धवन. Okay. एंड आई वॉज सपोज टू डू सतीश कौशिक फिल्म, जब वो डायरेक्टर कोई और था. Okay. एंड देन डेविड धवन के, एंड मेरे सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद Satish Kaushik was taken for that role, and I did not get to do that role which I wanted to do. And Satish Kaushik got a Filmfare Award for that film. So that वो फिल्म मुझे बहुत याद है कि यार वो फिल्म मेरे हाथ में आकर मेरे हाथ से चली गई. अगर मुझे साजन चले ससुराल अगर उस वक्त मिल जाती तो my career would have been on a different level And today. you are a good pairing with Govinda. With यानी Govind. महासंग्राम, खुद्दार, साजन चले ससुराल, अगर होती ये वो रोल तो आपकी Even पेयरिंग बहुत अच्छी चल रही थी. आग भी एक फिल्म थी, आई थिंक. तो सब कुछ था. my dates were finalized, my dresses were made, everything was finalized, and at the last moment गोविंदा का और डायरेक्टर का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ. whether director was changed at the last moment and David Dhawan came in as the director, and he said कि नहीं यार, according to me Satish Kaushik should be doing this role. And after getting everything finalized, Satish Kaushik got that role. ये वो 7 दिन वाला ही रोल था. if you see, यस, जो मेरा तबला वो वाला. 7 दिन में अनिल कपूर सेम था साजन चले ससुराल में विद गोविंदा. तो दैट फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है कि ये फिल्म मेरे हाथ में आई थी और मेरे हाथ से आकर निकल गई. और सतीश कौशिक भी एडवांटेज नहीं उठा पाए उस फिल्म का बिकॉज ही वाज नॉट वेल एंड देन ही वांटेड टू डायरेक्ट. ही बिकेम अ डायरेक्टर एंड वो बहुत ज्यादा एक्टिंग पर ही वाज कंसंट्रेटिंग ऑन हिज डायरेक्शन. तो मुझे लगता है अगर मुझे मिल जाती है फिल्म, तो एज एन एक्टर इट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल for me. So वो साजन चले ससुराल is also very close to my heart for not getting that role. And again, it is part of destiny कि वो नहीं मिलना. नहीं. किस्मत की आपका बात और है. फास्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन. या दूसरा क्वेश्चन है मेरे म्यूजिक के बारे में. आपने म्यूजिक की बात भी छेड़ी थी. सो योर टॉप 3 सॉन्ग्स, नॉट योर सॉन्ग्स, इन जनरल, आप जो अच्छे गाने आपको अच्छे लगते हैं और गुनगुनाते हो ज्यादातर. अरे I am a music buff. I am a music buff. I am a R.D. Burman buff. I am a लक्ष्मी प्यारे fan. 3 गाने मैं बता ही नहीं पाऊंगा. 3 गाने मैं बता ही नहीं पाऊंगा. So many of my favorite. मतलब आई नो. मुझे म्यूजिक कैसा अच्छा लगता है आपको बताओ. मुझे लक्ष्मी प्यारे का सिर्फ वो टंग 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 कर्ज. टंग टंग कर्ज. मुझे वो बीट बहुत अच्छा लगता है. मुझे हीरो का वो फ्लूट वाला वो नोट
वो वाह। रूट वो नोट बहुत अच्छा लगता है मुझे। आरडी के तकरीबन सारे गाने अच्छे लगते हैं। टॉप 3 में क्या बताऊं, अगर इम्पॉसिबल। अगर कोई आपको ऐसा पूछेगा कि आप ऐसा कहीं महफिल में बैठे हुए हैं या कहीं दोस्तों के साथ आपको एक गाना गाना चाहिए, तो कौन सा गाना आपके जहन में आ जाता है गाते हुए? मैं बताता हूँ, देखिए क्या है, मैं म्यूजिक फैन हूँ, मुझे गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, मगर मैं गाता बहुत बुरा हूँ। अब बोलेंगे अभी वेरी बच्चे, बैड। मेरा बच्चा भी अपना कान बंद कर देता है, ये बोलना नहीं मेरे करेक्ट। मेरे आप मुझे ये सुनाना कि बिल्कुल ही आपकी मेरे आवाज अच्छी है, साथ। आपकी आवाज अच्छी है। मुझे जितने लोग वहां ना, मैं सबसे इजी वाला गाना उठाता हूँ। एक तो वो जो है ना, हम्म, चल जाता है वो गाना। अच्छा। वो देखा ना हर सोचा ना हर, एक तो वो गाना इजीली हो जाता है, वो चल हम्म, जाता है पार्टियों में। और दूसरा वो चल जाता है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, एक वो गाना चल जाता है। तो जब मुझे गाने की बारी आती है ना, ये दो गाने जो बड़े इजी से है, वो मैं उठा लेता हूँ और अपनी जान छुड़ा लेता हूँ। तो आप बिल्कुल, लेकिन मुझे गाने के लिए मत बोलना। ये अभी 1400 लोग, 1400 लोग देख रहे हैं। आप अगर, हाँ, मैंने गाना शुरू किया तो सिर्फ 400 रह जाएंगे, 1000 अरे भाग आज और हजार आ जाएंगे। जाएंगे, और हजार आ जाएंगे मिला के। अच्छा, आजकल के जमाने के हीरोज, जो आपने बात की है कि कब तक रहेंगे, लेजेंडरी बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है आपके जहन में कि कौन है आजकल के टॉप 3 एक्टर्स, नॉट ओनली स्टार्स, एज एक्टिंग दे आर वेरी गुड इन एक्टिंग, सो इन योर चॉइस? देखिए, अ, होता क्या है, लोग स्टार्स को एक्टर समझते हम्म, हैं। मेरे दिल में एक एक्टर होता है और एक स्टार स्टार होता है। वो स्टार हो सकता है बहुत अच्छा एक्टर ना हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो एक स्टार है, अब उसकी फिल्में चल गई है, तो उसको बहुत अच्छा एक्टर माना जाता है। क्यों बहुत अच्छा एक्टर? बट मेरी नजरों में एक स्टार जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा एक्टर हो। वो एक स्टार है, उसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उसके चाहने वाले हो सकते हैं बहुत ज्यादा, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा एक्टर। तो अगर हम बात करते हैं अच्छे एक्टर्स की, अच्छे एक्टर्स, तो मुझे सबसे पहले अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा एक्टर लगता है, जो वर्सेटाइल, यस, कॉमेडी, ऑफ कोर्स। इमोशन, सीरियस, नेगेटिव, एंग्री, फनी, जो जो उन्होंने अपना एक बॉडी ऑफ वर्क जो इतने सालों में उन्होंने बनाया, ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन। दूसरा, मुझे गोविंदा बहुत अच्छा लगता है एज एन एक्टर। अब वो ये डेस्टिनी है, टाइम टाइम की बात है, ठीक है, ही मे नॉट बी डूइंग टू वेल टुडे, टुमारो मे बी अगेन ही विल कम बैक in some very good roles like Anupam Kher, Kader Khan, or whatever, or something. Maybe he can have a second inning tomorrow. But मुझे गोविंदा आज भी वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दो एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मुझे मुझे नसीरुद्दीन शाह वाह। एज एन एक्टर, हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। ये तीन तो हैं जिनको जिनके आपने आप देख लीजिए। नसीरुद्दीन शाह, he's done some माइंड ब्लोइंग कॉमेडी। हाँ, रोज आप जाने भी दो यारो देख लीजिए, आप दूसरी भी उनकी प्लेड फनी कैरेक्टर्स, सो नाइस। आप बेजुबान देखिए, वेर इज प्लेड अ विलन, या सीरियस इलाही विलन। खैर कर, इस जगह कुछ होने वाला है। हाँ हाँ, ये राइट, करेक्ट। ये देख लीजिए, या आप उन्हें क्रिश में देख लीजिए, वेर हम्म, इज प्लेड अ सीरियस विलन। सी हिम इन सो मेनी हिज श्याम बेनेगल मूवीज। तो जो रेंज है एज एन एक्टर, वो बहुत कमाल है। सो आई फील अमिताभ बच्चन, गोविंदा एंड नसीरुद्दीन शाह, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे, आई डोंट नो, बट बहुत से दिस लोग दे घनश्याम। आर ऑल ओल्ड नेम्स, ये जो आपने कहा ये पुराने नाम हैं। मैं बोल रहा हूँ हाँ, आजकल के जमाने के जो है, जो 2000 से शुरू हुए या फिर लेट, या फ्रॉम मिड ऑफ 2000, लाइक देयर तो इज सो मेनी शाहरुख खान नेम्स। शाहरुख एज एन खान एक्टर, आई एज एन फाइंड एक्टर। शाहरुख very versatile, because he's the kind of roles he has played. Uh, he's very good in all those characters. So I think uh, Shahrukh,
और उसके अलावा जो बाकी जो अभी आए हैं दे आर टू न्यू टू टू जज एज ऑफ नाउ, बिकॉज जो भी आए हैं उनकी जैसे मुझे वरुण धवन, अभी उसकी कूली नंबर 1 की रिपोर्ट नहीं आई है अच्छी, ठीक है, बट आई थिंक उसके अंदर रेंज है वेर कैन प्ले कॉमेडी, या डांस, यस बहुत सारी चीजें ऐसी। बाकी दूसरे हीरोज आप देख लीजिए, कोई हीरो एक्शन बहुत अच्छा करता है तो एक्टर बहुत बुरा है, कोई स्टार बहुत बड़ा है तो एक्टर बहुत बुरा है, बहुत सारे ऐसे हैं। बट मेरी नजरों में एक अच्छा एक्टर वही है जो सारे रोल्स कर सके, वो कॉमेडी भी अच्छी कर सके, वो डांस भी अच्छा कर सके, वो एक्शन भी अच्छा कर सके, वो इमोशन भी अच्छा कर सके। मेरी नजरों में वो एक अच्छा एक्टर है। तो करंटली में मुझे शाहरुख, करंटली क्या बोलूं, शाहरुख तो अभी पुराना ही हो गया, बट आई फाइंड शाहरुख टू बी वेरी, यंगस्टर्स में आई फाइंड वरुण धवन टू बी दैट रेंज ऑफ रोल्स। बाकी जो दूसरे हैं दे आर डूइंग ओनली वही कंफर्ट जोन में, जैसे आप ऋतिक रोशन को ले लीजिए, या आप टाइगर श्रॉफ को ले लीजिए, या आप रणवीर सिंह. रणवीर 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 सिंह अगेन इज अ वेरी गुड एक्टर। रणवीर सिंह इज अ वेरी गुड एक्टर, जो जो वर्सेटाइल है, जो जो कमाल की कॉमेडी भी करेगा, ये रेंज, डांसर भी अच्छा है। रणवीर रणबीर सिंह इज कपूर गुड। भी है आपके पास अगर वही मैं बोला, रणवीर कपूर, या जैसे रणवीर कपूर की आप बात करते हैं, या जो दूसरे जो है ना, उनको पता है कि यार ये हमारा डिमांड है तो हमको सप्लाई इतनी रखनी। आप देखिए टाइगर श्रॉफ, या रणबीर कपूर, या क्या नाम है, विक्की डोनर, नाम तो आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना, या जो मसान में जो हीरो विक्की कौशल. विकी कौशल। तो अब इनका क्या, आप देखिए गोविंदा, अमिताभ बच्चन, ये लोग महीने में 2 फिल्म रिलीज करते हैं क्योंकि एक्टर बहुत अच्छे। बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम टाइगर श्रॉफ, फ्रॉम ऋतिक रोशन, फ्रॉम, क्योंकि उनको पता है कि हमारा ये इतना डिमांड है, वी कैन डू 1-2 फिल्म्स इन अ ईयर, एंड ये हमारी ऑडियंस है, दे विल वॉच। बट द मोमेंट दे गिव 6 फिल्म्स, 10 फिल्म्स इन अ ईयर, इट विल नॉट वर्क फॉर देम। तो वो हर हर एक्टर, हर बड़ा स्टार अपने कंफर्ट जोन में काम करे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक्शन, टाइगर श्रॉफ को पता है मैं एक्शन बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं डांस, तो मैं यही करूंगा और मेरी इसी जॉनर की फिल्में होंगी, मैं यही टाइप की फिल्में करूंगा, साल में 2 ही फिल्में रिलीज करूंगा और मेरी फिल्म हिट हो जाएगी। ऋतिक रोशन को पता है मैं साल में 2 साल में एक ही फिल्म रिलीज करूंगा, ये मेरी फिल्म हिट हो जाएगी। तो दे आर स्टार्स, दे आर स्टार्स, उनकी अपनी एक, वो एक है उनके अंदर, वो एक चार्म है उनका, उनकी अपनी एक ऑडियंस है। बट वर्सेटाइल मुझे यही रणवीर सिंह, या ये जो नाम मैंने गिना है, शाहरुख, राजू, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट योर मूवीज. आपकी जो फिल्म्स है उसका क्विज मैं बनाया हूँ, और आपकी जो फिल्म्स है मैं उसको अरबी में टाइटल दे दिया, और आपको वो बूझना है. अरे बाप रे, हाँ। आप मेरे इशारे देख सकते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल आई विल आप गिव मुझे यू. बताइए कि इसमें कोई इनाम वगैरह आप मुझे देने वाले हैं कि आपका इनाम समझ है नहीं यहाँ की पब्लिक, आपकी प्यारी, जो आपको प्यार करती है. और अगली बार आपको जरूर इनाम मिलेंगे जब मैं आपसे मिलूंगा दुबई में. अच्छा ठीक। जरूर है. So the first movie, it's a very famous movie. इसका नाम अरबी में है अल तब्बाख. अरे बाप, अल अल ताकत कैसे, अल ताकत नहीं लग रही है? अल तब्बाख. हाँ, ये कुछ कट रहा है, आपका नेटवर्क कट रहा है, क्या है, फिर से? नहीं, अल तब्बाख. This something. हम्म, खाने की चीज है, खाने की चीज है, Yeah, something. खट्टा मीठा नहीं ना? No, नॉट it's खट्टा one मीठा। word only. Al Tabbakh, अच्छा, with the famous superstar. फराह, फेमस सुपरस्टार, अभिमान, व्हाट फिल्म दैट डिड विद अमिताभ बच्चन, खुददार नहीं, It's only Amitabh फरार। Bachchan superstar in the film industry. नहीं, कौन सी फिल्म है ये? Hmm, बहुत छोटे थे आप उस फिल्म में.
somebody serve you एक बार food. somebody serve me food. ये कौन सी फिल्म है यार? Hey. बावर्ची Yes, बावर्ची. बावर्ची या ओके बावर्ची. बावर्ची इतना इशारा, इतना ओ, खाने को दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो नमक डालने का भी सीन देख रहा आपके साथ. अच्छा उसको क्या बोलते हैं बावर्ची को? अल तब्बाक अल तब्बाख. अल तब्बाख. अल तब्बाक या अल तब्बाख. ये मैं भी याद रखूँ. जरूर खाने की चीजें जरूर याद करना चाहिए आपको. अच्छा, अरबी में ये फिल्म बहुत फेमस है. उसका नाम है तिल्क अस्सबअ अय्याम. ये नेटवर्क कट गया, फिर से बोलिए. या तिल्क अलसबअ अय्याम. ये तो ये 7 दिन हो गया ना, वो 7 दिन. वो 7 दिन. वो वेरी 7 इजी. दिन या इशारों में समझ में आएगा आपको. यस, वो 7 दिन. वन ऑफ योर फेमस मूवी. देयर इज अनदर मूवी, उसका नाम भी अरबी में वही पड़ता है, लेकिन मैं उसका थोड़ा बदलाव दूंगा. उसका नाम है अल दफ्तर. किताब किताब. किताब यस, किताब. किताब. या मैं उसका नाम अरबी में भी किताब रहता है, लेकिन मैं उसका अच्छा अच्छा उसका बच्चा बना दिया, जो छोटा रहता है उसको बोलते हैं हम दफ्तर. बच्चे, किताब का छोटा अच्छा बच्चा. डायरी 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 डायरी. या डायरी को हम बोलते हैं दफ्तर, तो उसका नाम किताब है. या यू आर राइट. अगर मैं किताब बोलता तो क्या उसमें कौन सा सवाल रहता? कोई सवाल नहीं रहता उसमें. हाँ. या देयर इज आल्सो वन ऑफ योर मूवी, कलाम फी कल्बी. कलाम मिन कल्बी. सॉरी, कलाम मिन कल्बी. ये कलाम आपके, मतलब बोलना. या बोलने का एक अंदाज रहता है, वो रहता है मेरे कल्बी. और ये हम आपकी, आपके रहते हैं. नो हम आपके नो समथिंग सिमिलर. वही आपकी जो एर्निंग थी, जो टाइम था, जवानी का टाइम, शुरुआत की टाइम की फिल्म है. वो भी एक फेमस एक्टर के साथ. बहुत ही फेमस एक्टर है, बहुत ही बोल फेमस खान है. बोल, दिल बोल. अफसाना प्यार का. अफसाना प्यार का. यस, हाँ अफसाना अफसाना प्यार प्यार का. का. ये आमिर खान के साथ आपने एक फिल्म की थी, आपने ये हमने भूल गए. ये एक सवाल था मेरे हाँ पास. आमिर खान के साथ आपकी भी ट्रेनिंग हुई, सलमान खान के साथ भी आपने काम भी किया. पता नहीं शाहरुख खान के साथ आपने कुछ काम किया था, कुछ ऐसा? नहीं शाहरुख खान के साथ नहीं किया. क्या हो गया एक्चुअली पता है, आई हैव स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ टेलीविजन. तो इफ यू डूइंग टेलीविजन देन यू आर शूटिंग 15 to 17 days in a month for that TV and you are under a contract कि आपको वो लोग जब बुलाएंगे यू शुड बी अवेलेबल. तो मैंने क्योंकि टेलीविजन की तरफ अपना रुख कर लिया, तो इफ यू डूइंग टीवी देन यू कांट डू फिल्म्स. कई बार ऐसा हुआ है वेयर आई हैव लॉस्ट ऑन सम गुड अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ टेलीविजन. शाहरुख के साथ में भी 2 बार ऐसा हुआ वेयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम बट आई वाज डूइंग टेलीविजन. ओके राजू, दिस लास्ट वन. उसके बाद मैं लोगों का कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं वो लूंगा. लास्ट वन इज वन ऑफ योर फेमस मूवी आल्सो, हामिद हेलो. हामिद हेलो. हामिद हेलो. हेलो मीठा खट्टा मीठा. खट्टा मीठा. खट्टा यस, मीठा खट्टा मीठा. या खट्टा मीठा. अच्छा हामद हामद मीन्स खट्टा. या मत हामिद, हामिद. हाँ ये मेरा नाम हाँ हामिद है, मेरा नाम हामिद है, वो नहीं. पर उसका हाँ, स्पेलिंग सेम हामद. नहीं नहीं, स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है उसमें. जा आता है, अगर उर्दू आपको जानते हो तो हर्फ जा, जैसे कि जिया उल हक, या जा हाँ आखिरी में जा आता है, तो हामिद हेलो. हाँ अच्छा अच्छा. हामिद. हाँ या हाँ अच्छा. यस. अच्छा एंड में जेड है. या जाल एडमिट जाल. है. या जा, हामिद हेलो. हम्म. Okay, at the end, I will take some question of the audience. उसके पहले मैं कुछ पूछना था, आजकल आप क्या कर रहे हो राजू जी? आपके प्रोजेक्ट्स, आपने कुछ आप डायरेक्शन करना चाहते हो एक फिल्म, और कुछ ऐसे सीरीज आप बताना चाहते हो पब्लिक को, कौन से काम कर रहे हैं आजकल? अभी क्योंकि लॉकडाउन अभी खत्म हुआ है या सो आई एम ऑन द नेगोशिएशन स्टेजेस विद सॉरी. कैन एक्सक्यूज मी. या
That's okay. So I'm on the मैं आर्य आवाज या आ रही है आवाज, या आई थिंक स्टैंड को बहुत इंतजार हाँ करना मैं पड़ा. थोड़ा so Yeah. before the lockdown, till the last day of the lockdown, I was Mhm. shooting for a serial called Nazar. Okay. तो उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था. I was playing a negative role in Nazar. And Till which the last platform it Star will be Plus. released? Star Plus. Okay. No, I was shooting that. It was already on air. So during the lockdown, that serial went off air. तो हमारा जो लॉकडाउन का फर्स्ट डे था, तब तक मैं शूट कर रहा था नजर की. लॉकडाउन के दौरान जैसे सबको पता है, सबका काम रुक गया था. अब सब धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है. तो अब मुझे फिर से लोगों के साथ निगोशिएशन मेरी शुरू हुई है. आई एम ओपन टू न्यू असाइनमेंट्स. एक अमेजॉन प्राइम को लेकर एक वेब सीरीज है जिसको लेकर बात चल रही है. एक सोनी पर एक शो है, उनसे बात चल रही है. Wow. होपफुली बाय जनवरी एंड आई थिंक आई शुड हैव समथिंग ऑन एयर. That's great. That's ऑल्सो ये great. जो फिल्म है जो मैं आपको बता रहा था, वो उसके लिए भी आई एम मीटिंग प्रोड्यूसर्स. आई एम लुकिंग आउट फॉर अ प्रोड्यूसर फॉर दिस फिल्म. ये जो हीरोइन ओरिएंटेड जो फिल्म मैं आपको बोल रहा हूँ, तो होपफुली वो भी स्टार्ट हो जाएगी. ऑल्सो आई एम डायरेक्टिंग फिल्म फॉर एन OTT प्लेटफॉर्म विद अ बिग स्टार. दैट फिल्म हैज ओनली 2 कैरेक्टर्स. इट इज अ 1.5 hour film and there are only 2 characters in that film. Oh. So that I'm going to direct again. कुछ ये बताना सारी चाहते हो उस फिल्म के बारे में? कौन है उसके अंदर या कुछ? अभी सिर्फ बातें चल रही है. एंड टिल समथिंग डजंट मटेरियलाइज, इट इज टू अर्ली टू डिस्कस. बिकॉज क्या है, OTT जो होता है इनका अपना खुद का भी बहुत सारा कुछ होता है कि हमको ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, Yes. ये एक्टर नहीं चाहिए, वो एक्टर चाहिए. तो अभी अभी उस फेज में, उस लेवल पर बातें हो रही है. Nothing has been finalized. Only the OTT platform has been finalized and I have been finalized. The subject has been finalized. We are negotiating with actors. Okay. और वो हीरोइन ओरिएंटेड मूवी, अगर आपके जहन में कौन सी हीरोइन उस पे फिट हो सकती है? जस्ट लाइक imagination of director. I think you are thinking for some faces. I think Sonakshi Sinha very Okay. for that. Yeah. That's great. So मेरी को जो स्टूडियोज है, the studio is also lined up. जो कॉर्पोरेट जो बायर्स हैं, that buyer is also lined up. The subject has been blocked. So basically producer ढूंढ रहा हूँ and this main lead. I have pitched the subject to Sonakshi also. Let's see. इंशाल्लाह ये हो जाएंगे फिल्में जल्द, इंशाल्लाह जरूर. Inshallah. अच्छा राजू, I will take some question. First of all, there is a lady from Dubai. She's named बिन्त الدار. बिन्त الدار का मतलब हिंदी में घर की बेटी. वो आपको देख के ही चौंक गई. बोले अरे ये अभी तक बदला नहीं है राजू, वही का वही रहे. Yeah. There is a question from S. Adam. Tell us about the heroines. Also, please, Zarina Wahab, Parveen Babi, and Mosami. परवीन भाभी के बारे में क्या बोले? A lot of things have already been written about her. Zarina Wahab is not doing too many films and she's not very active. So I'm not in touch with her. I did Chith Chor, then I did Agar, Amol Palekar, Zarina Wahab again. Agar I did with her. And also I did a film called Aakhri Mujra. Oh. With Zarina Wahab. And then I think I did some more films with her, but I don't remember. She's a nice actress, nice human being, but I have not been in touch with her. And Maushami Chatterjee is a heroine with whom I never got along. I never liked her. And even while shooting, मेरा कभी उनके साथ जमा नहीं, because
एक तो उनको लैंग्वेज को लेकर उनकी बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनको हिंदी आती नहीं थी कभी। हाँ ओके। तो हाँ, उनको रीटेक्स वो बहुत देती थी। और मैंने एक फिल्म की थी दो झूठ, विनोद मेहरा मौसमी चटर्जी। तो उसमें एक बार उनको मुझे मारना था, तो उन्होंने मुझे सचमुच में मार दिया। ओ माय गॉड। तो तब से थोड़ा सा मेरा वो। फिर एक फिल्म मैंने की थी तुम्हारी कसम, उसमें भी वो मुझे मारते मारते लाती और एक बेड पे फेंक देती है लाके। तो ओफ। उस बेड पर मैट्रेस नहीं था, सिर्फ एक दरी बिछाई हुई थी। तो मैंने उनको बोला भी था कि मुझे धीरे से फेंकना, वहां लकड़ा है, वुडन है, ओ देयर इज वो नथिंग ऑन। इन स्पाइट ऑफ दैट शी फ्लंग मी ऑन दैट ओ बेड। वाओ। तो तब से मेरा उनका थोड़ा सा, नेवर लाइक्ड हर एज एन एक्ट्रेस आल्सो। आई डोंट थिंक शी वाज अ वेरी ग्रेट एक्ट्रेस। तो ठीक है। आपने बहुत ऑनेस्टली बताया उनके बारे में हिस्ट्री में। आई होप शी डोंट सी दिस। ये अच्छा मेरे कोई। साथ में एक प्रॉब्लम रही है, ये मेरे साथ में एक प्रॉब्लम रही है कि आई हैव नेवर बीन एबल टू एक्ट ऑफ द कैमरा। मुझसे चापलूसी या चमचागिरी या मेरे चेहरे पे दिख जाता है इफ आई डोंट लाइक समवन। और मैं बहुत ब्लंटली मुंह पे बोल भी देता हूँ, और इसी वजह से मेरे रिलेशन बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं लोगों के साथ। कि आई कांट एक्ट, आई कांट लिव दैट डुअल पर्सनालिटी के जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज अ वेरी बिग स्टार, तो मैं वहां घुस के रहूं या मैं चमचागिरी करके रहूं तो मुझे फिल्म दिलाएगा, भले ही मेरी बेइज्जती हो रही है, या झूठी तारीफ करूं। तो मेरे चेहरे पे दिख जाता है। सो आई कांट एक्ट बिहाइंड द कैमरा। मैंने हमेशा बुरे को मुंह पे बुरा बोला है, और अच्छे को हमेशा अच्छा बोला है, मुंह पर बोला है। सही मे बात। बी दैट इज वाई आई डोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स, बट दिस इज द वे आई एम। Yeah. There is Hussein from Iraq. He's asking about your working experience with Anil Kapoor and Kajol in हम आपके दिल में रहते हैं. आपने कुछ बताया था उस फिल्म के बारे में. या Maybe he हम want to आपके दिल। know in English with you. यस। So. हम आपके दिल में रहते हैं। I had done for the same production house. I had done a very old film called Prem Nagar, where I was playing young Rajesh Khanna. Yes. So D. Ramanaidu was the producer, and when they were making Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain, the casting director sent me to Suresh Babu, Ramanaidu's son. So he saw me and he said, "Do you remember me?" So I said, "No, no." That was for अनाड़ी। यस। Anadi, yeah. हम आपके दिल में रहते हैं से पहले, बिफोर हम आपके दिल में रहते हैं, आई हैड डन अनाड़ी फॉर द सेम प्रोड्यूसर। डी रामानायडू was the producer of Anadi, and he was the producer of हम आपके दिल में रहते हैं. So for Anadi I had met Ramanaidu and Suresh Babu. So Suresh Babu had told me, his son, Ramanaidu's son, Venkatesh's elder brother, he said, "Do you know me? We worked together as kids, and I was playing young Prem Chopra and you were playing young Rajesh Khanna. So you work for Prem Nagar for my company." So that is how I got Anadi. And then when they were making Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain, I got this film. Now Satish Kaushik again wanted someone else for this role. So Suresh Babu said, "No, he's our actor and he will do this character, Kajol's brother. So we will finalize him." And it was fun. It was fun working with Satish Kaushik, brilliant director, Kajol, wonderful co-actress, Anil Kapoor, Of course. dedication, Kamal. And this film we shot in one schedule. We Oh. finished this in one schedule. Yeah. We were shooting in Hyderabad, and it was a remake of a Telugu film. Wonderful experience and good role. Yeah. The same lady from Dubai, I didn't see her question full.
she's asking me a question. Even I don't know about this. There is an actress, child actress, was acting with you in 70s or maybe in the late 70s. Most of people, there is a foi that she is your sister. Is it right? Your sister was working with you in the films? No, no, no. I don't know from where they get this. No. My sister is oh, No, more but than 15 years. कोई ऐसा अफवाह था कि कुछ बोलते थे लोग कि I'm hearing this for the first time. आई डोंट नो ये दुबई में कैसे फैल गया ये बात. Also, there is a guy. His name is. He's saying that the first Indian first child artist. He's from College Times. The name is College Times. The first and last child artist which proud to be in Bollywood. It's Raju. So as I said, that the miracle boy film industry. Thank you so much. यहाँ पे कई ऐसे क्वेश्चंस है मुझे समझ में नहीं आ रहे. There are so many. Somebody asking what you are doing these days. You just said that about your projects, current projects. Okay. How I can have a feed like yours? She is Shilpa. What she's saying? How can I have a feed like yours? Feed का मतलब समझ? Yeah, I don't know feed. Maybe she's saying something good about your face or something. I don't know. Feed. She writing feed. Maybe she'll write again. Okay, there is another, some question like from Owen. He's asking, do you drink coffee? You know, recently somebody told me, a lady, she told me, oh, you were so cute when you were a kid. I wish to have a kid like you. I wish I have a kid like you. And I told her, maybe I can help you. Oh my God. Yes. ये पता नहीं इन्होंने ये क्यों ये पूछा कि आप do you drink coffee a lot? You are coffee lover or chai lover, Raju? No, chai lover. No coffee. No coffee. But whatever I have, either coffee or tea, it's just 2 in a day. It's like one morning and one evening. Besides that, no. Okay. So there is some people asking. Most people thought Master Raju and Baby Pink are siblings. Siblings. Siblings, yeah. No. Okay. I don't know what to. I have so many questions, but you know the time, and we said too much, and I'm so sorry that I take you more than 1 hour, Raju. I'm so sorry for that. No, it's okay. Yeah. So it was fun talking to you. It was nice thank you so talking to you, and we should catch up Zarur. more often. And if any of your followers, anybody on your page wants to connect with me, you can connect with me on my page, on Facebook, on Instagram. I'm there. I'm active on my social media. I'm on Twitter. You can connect with me, and maybe on some other occasions we can come live again on some like I'll tell you when Bashuda expired. I was live on Insta on the day he expired because I did Chit Chor, Yes. I did Hamari Bahu Alka, Chakravyu, Khatta Mitha. I did so many films with him. Yes. So I had come live on the day he expired. On RD's death anniversary, I was live. I was talking about RD. So maybe ऐसे किसी occasion पर we can like I'm a music fan, you're a music fan. Maybe on someone's anniversaries or something we can tie up and we can talk specifically on their cinema, their music, and maybe something like that. We'll catch up soon again. And it was nice talking to you. It was fun. I hope all your followers have enjoyed watching this conversation. Thank you so much. Thank you so much. I'm so thankful.
था। I'm so thankful that you was with me and you know the memories of childhood because even me यानी जब मैं बच्चा था तो मैं ज्यादातर हिंदी फिल्में देखता था वही एरा के 70s 80s के तो आप वहाँ पे छा गए थे हमारे बचपन के टाइम में so that's can be one of the my finest interaction with you Raju. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Take care. All the best to you for your page Thank you. and for whatever work you're doing on your you've been I think अभी आपने कुली नंबर 1 के बारे में भी लिखा था which I read and a lot of things you're doing there and जब मैं दुबई भी था तो I watched a lot of Arabic comedy shows Mhm. though I understand the language but I found it very fun like comedy has no language Of course. बॉडी का था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ऑल्सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अरेबिक म्यूजिक जो टिपिकल जो उनका एक स्टाइल है गाने का और वो जो ऐसे ऐसे करके वो डांस करते हैं जो ताली वाली बजाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑल्सो दी डांसर्स जो आई थिंक दे आर नॉट फ्रॉम दुबई बट From Egypt, from Syria, from समथिंग yeah. तो वो भी लेकिन मैं दुबई के अक्सर चैनल्स पर मैंने वो सब प्रोग्राम्स देखे हैं कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है दुबई का Thank you. यूएई का I've been all over UAE I've been to Abu Dhabi Ras Al Khaimah Wow. Sharjah so many places I've traveled with my events with my shows so अब तो दुबई रहा भी नहीं on my last visit मुझे तो रेत कहीं पे दिखी नहीं थी I still remember my first trip to Dubai वहाँ पे मुझे कैमल्स और सैंड माउंटेन्स वगैरह दिखी थी when I was a small kid and my last trip तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं where I have come यहाँ तो दुबई नहीं लग के सब वेस्टर्न कंट्री जो डेवलप किया है इस कंट्री ने वो बहुत अच्छा है लोग बहुत अच्छे हैं Yeah. आपने मुझे Yeah. मुझे याद दिला दी संजय दत्त के साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया था तो संजू बाबा ने मुझे बताया था दुबई के बारे में कि वो पहली बार जब दुबई आए थे तो दुबई में सिर्फ एक होटल था और एक मॉस्क जब नाम की शूटिंग कर रहे थे वो टाइम में तो दूसरी बार जब आए युलगार के टाइम में तो वहां पे 4 होटल बन गए और 4 मॉस्क बाद में जब आए अपनी बीवी के साथ मिलने के लिए उनकी बीवी थी यहाँ पे तो बोले यार ये दुबई नहीं है दूसरा मुल्क हो गया पता नहीं हम LA आए या फिर न्यूयॉर्क आए समझ में नहीं आ रहे कहाँ आ गए yeah. Correct. I have come to Dubai much before Sanjay Dutt has come to Dubai. Yes. Sanjay Dutt यलगार के टाइम पे I am talking about must be 78, 79. Oh. Wow. तब तो कुछ भी नहीं था मतलब only one airport. Yes. राशिदिया पे था. राशिदिया. हाँ राशिद एयरपोर्ट वो एक ही एयरपोर्ट हुआ करता था शारजा में एयरपोर्ट नहीं था ऑल्सो दैट हाँ वो जो लिंक करता है दुबई शारजा को आई थिंक वो भी नहीं था और फिर वो अबरा करते हैं ना वो हुआ करता था वो आई एम टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट ट्रिप अभी तो लास्ट ट्रिप पे तो आई केम तो एकदम बिल्कुल अलग अबरा अभी तक स्टिल है अच्छा स्टिल देयर yeah because it's like tradition way to go from this area to that area अभी तक वो 2 रुपए में हम जाते हैं वहां तक यहाँ तक आने के लिए तो वो अभी तक है उस वक्त उसको चाराना अबरा बोलते चाराना अबरा अभी 2 रुपए 2 दरहम यस तो आप सोचिए किस जमाने में मैं पहली बार आया था वाह एंड अभी मैं इवेंट्स वगैरह को लेकर आया अभी तो बिल्कुल अलग है आप लोग को जू देखा मैंने कमाल का जू और वो जो और भी जो अम्यूजमेंट आपका ये स्नो मॉल ऑफ द एमिरेट्स यस इन दुबई वो है वो मैंने अभी रिसेंटली मैंने देखा स्नो वर्ल्ड ना क्या है वो या स्नो वर्ल्ड इन द एमिरेट्स मॉल हाँ वो मैंने देखा बहुत कमाल है बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि दुबई इज मेरा सपनों का इंडिया हाउ आई वांट माय इंडिया टू बी दुबई इज हाउ इट शुड बी clean, systematic, law and order, everybody's behaving themselves, everybody's following the law, सब proper, कोई झगड़ा नहीं, कोई hatred नहीं, कोई negativity नहीं, everybody just working and making money and सब लोग कानून से चलते हैं and positivity है, बहुत अच्छा मुझे ऐसा लगता है मेरा इंडिया हमारे ही इंडियन लोग हैं वहाँ पे yes. but
वहाँ का माहौल कितना अलग है, which I would want my India to be. that's great राजू सर एंड आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका आपने अपना टाइम हमारे साथ बिताया. I'm so thankful again for you and so thankful for people who share with us, and I hopefully they enjoyed to see you and they remember so many good memories because of you are with us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Take care. خدا حافظ. طبعا خلصنا اللقاء. Thank you so much for all you guys. For Arab people, I can't translate that too much. You know, كلام كثير كثير إذا قلت لكم إياه بالعربي عن ماستر راجو، بس إن ماستر راجو باختصار هو كان يعتبر الطفل المعجزة في السبعينات والثمانينات أيضا. هو صادن كان هو آخر عمل يعمله كطفل، من بعدها جاء للسينما الهندية كمساعد بطل، وهذا الشيء هو قال بنفسه أنا ما ارتحت لهذه الأدوار. هذه الأدوار كان يحس أنها أدوار بسيطة، أدوار صديق البطل، ما كان لها أي أهمية في حياته، لأنه هو يوم كان صغير كان يأخذ مبلغ وقدره كطفل، وكان يعاملونه كمعاملة نجم كبير. يقول لك أميتاب باتشان كان ينتظره ينتظره في موقع التصوير، هو متأخر يعني. هذا كان راجو كان صغير. وكذلك يتكلم عن فترة ما بعد الطفولة، إنه حصل دور في فيلم خدار اللي هو دور المجرم، وهذا الدور اللي كان هو يعني من أفضل أدواره بالنسبة له هو أيضا. وكذلك يتكلم عن أمور كثيرة في حياته الشخصية، أنه قال أنه هو صادن من الأفلام الجميلة لكن هو ما استفاد منه مثل ما استفاد أنيل كابور ولا آخرين اللي مثلوا فيه، لأنه هو كلامه واضح أنه من بعد فيلم وصادن المفروض هو يطلع طلعة كبيرة في السينما الهندية. قال أنا ما عندي مشكلة، مش شرط إني أمثل بطل، لأن من زمان يقول أنا في مخي كان إني ما أريد أمثل كبطل، بمثل كممثل مثل بران، مثل الله يرحمه قادر خان، مثل بريم تشوبرا، وهذا الممثلين كان يريد يكون مثلهم. بس للأسف هو يقول أنا غلط يمكن في هذا الاختيار، لأن كان جاتني وايد أدوار بطولة بطل كبطل يعني، لكن للأسف هو رفضها. وهو حاليا يعني يمثل في مسلسلات، وهو يعمل كمخرج أيضا، وعنده عملين في المستقبل. واحد بيخرجه كفيلم حق ممثلة، وحاط في باله سوناكشي يمكن ياخذها في هذا الفيلم، وفيلم ثاني راح يكون حق أمازون أعتقد بيمثل فيه مسلسل، وفيلم راح ينتج حق شركة من شركات النتفليكس أو غيرها، بيكون من إخراجه هذا الفيلم. وهو قاعد يتكلم عن الموضوع هذا، وهو كاتب أيضا على فكرة يكتب، فهو عدة مهارات عنده. والجميل في الموضوع أنه يقول الحمد لله أنا مش مثل غيري، مثل بعض الأطفال اللي يمثلوا في الطفولة وكانوا مشهورين من بعدها اختفوا بسبب المشاكل المادية. قال الحمد لله كان أبوي يشتغل في موضوع الحسابات، وكان المبلغ اللي كان يجيني لأي فيلم اللي هو 1 لاك ذيك الأيام يعتبر ترى مبلغ كبير جدا. فهذا المبلغ كان هو أبوه كان يستثمره وكان يجمع حقه، وهو مرتاح يعني ماديا مرتاح الحمد لله. يقول لك في بيته مع عياله اموره طيبه، فكل شيء زين يعني. فامور كثيره، وتكلم عن دهرمندر كيف كان معاملته يوم كان صغير في فيلم سمادي وفيلم كرودي، وكان دائما عفوي جدا دهرمندر، مع انه كان هو نجم كبير جدا، بس ما كان يعامل حد كان نجم، كان يعامله كصديق وكواحد من العائله. كذلك قال عن متهن انه متهن صديقه هو مفضل عنده متهن شكربوتي، بالاضافه الى أميتاب باتشان. واسمه راجو هو اصلا اسمه هو مسلم، يعني مش راجو يعني. الناس انا بروحي ما كنت ادري قبل، الا بعد قبل كم يوم عرفت انه هو مسلم اصلا، مش اسمه الاصلي راجو. وهذا الاسم راجو اعطاه الفنان الراحل سنجيف كومار، واسمه الاصلي هو فهيم. فسنجيف كومار يوم اعطاها الاسم هو ما استغنى عن هالاسم، مع ان سنجيف كومار مات وهو كبر يعني. بعد ما كبر قال انا ما صار ينقال لي ماستر راجو، لكن انا بخلي اسم راجو معاي وبسمي نفسي راجو شرشتا، وهذا الاسم هو اللي اختاره حقه عشان يكون حق يعني في مسيرته، لانه احتراما للقامه الكبيره سنجيف كومار اللي ما راح ينساها طول عمره. طبعا حكايات كثيره وامور كثيره تكلمنا فيها، واللقاء كان صراحه ممتع مع هذه الشخصيه، لان انا احب اتواصل مع الناس اللي هم من هالنوعيه، من هذول اللي هم لهم ذكريات خاصه مع السينما الهنديه.
وهاشي جبل. I translate quick translate what we talk, me and Mr. Raju, about his journey in short Arabic, and I hope that Arab people they be satisfied about what was in Hindi. It was now in Arabic for you. So thank you so much, all of you guys who participated with me, and hopefully we'll see you, inshallah, next week with another personality if there is a chance. And till that time, Happy New Year again, and be safe and have a good life every time. I praying from my bottom of my heart that whenever you participate my channel you will be in good health. شكرا جزيلا لكم ونشوفكم على خير إن شاء الله. ولين ذاك الوقت تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.